morning. How are you? I said Dr. Khanna to earlier, minute. Okay. I wish. Now he has put you on the full screen. Yes, now I can see He, everybody. he Okay, knows sir. that who's the VIP. अरे I think- नहीं सर, क्या बात Okay. करते हैं सर. Good morning, everybody. Sir, morning. Sir, it's already 12 o'clock, which is started. I'll request Mr. Gagandeep Singh Jindal, President of the Thalassemia and Sickle Society of Bangalore, to open the house. Well, thank you, Dr. Arora. I would like to welcome our panelists as well as our attendees for today's session, which is on two important topics. One is iron chelation and bone health in thalassemia. Bone health has not been given that much of focus among thalassemics, but it is now becoming a very important topic. As you would be seeing, there are a lot of thalassemics now who have crossed 18 and now are facing bone issues. So, and of course, iron chelation has always been a growing concern among thalassemics as well. Me being a thalassemic myself, know that these are very two important topics for us. This is COVID times. We need to take extra precautions on our iron chelation so that our iron is under control and our other organs are not affected. I would like to welcome everyone here on behalf of the National Thalassemia Welfare Society and the Thalassemia Society of Bangalore, and I would like to welcome our panelists. We have three main celebratories today who would be the chairpersons. One would be Dr. V.P. Chaudhary. Would you slide? Do you want me to? He is the former professor and head and Department of Hematology, AIIMS, New Delhi. He is also senior consultant for two hospitals. He's the advisor for National Thalassemia Welfare Society, Federation of Indian Thalassemics. He's been in the forefront of thalassemia right from the beginning. So welcome, Doctor. And then we have our second, Dr. Rajiv Bansal, who is a senior consultant, HOD of pediatrics. He's in charge of the thalassemia unit at SDMH. And finally, we have a third chairman, who is Dr. J.M. Chhatnan. He's the DM in hematology from AIIMS, New Delhi. And of course, he's a fellow awarded the Fellowship of Indian Society of Hematology and Transfusion Medicine. They will be the chairpersons who will be taking this session forward. And I would like to hand it over to Dr. V.P. Chaudhary to take charge. Hello. Good afternoon to everyone and welcome to this session on chelation therapy and bone health organized by National Thalassemia Welfare Society, and grateful to Dr. J.S. Arora, the secretary, who has given an opportunity to chair this session. And as said earlier, for any thalassemic child, two main pillars are regular blood transfusion and chelation therapy. And both are important. And today we are going to concentrate on chelation therapy, which is a major pillar, and iron overload leads to multiple toxicities and various issues. How do we prevent the development of all these problems and chelation therapy? We have Dr. Shruti Kakkar, who is Associate Professor of Department of Pediatrics at Dayanand Medical College, Ludhiana. She has main interest is thalassemia and malignancies. She is a recipient of multiple awards and more important by the TIFF Renzo Gallino Fellowship in hemoglobinopathies, which she has received, and she is an expert, and I request her to deliver a talk on chelation therapy in reference to thalassemia major patients. Over to Dr. Shruti. थैंक यू सर फॉर दोज काइंड वर्ड्स. सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी सारे पेरेंट्स का और उन बच्चों का जो आज हमें सुन रहे हैं. थैंक यू डॉक्टर अरोड़ा एंड नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी हु हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट iron chelation in thalassemia.
सो जैसे कि डॉक्टर चौधरी ने कहा कि इट इज़ आयरन किलेशन इज़ वन ऑफ द मेन पिलर्स इन मैनेजमेंट ऑफ थैलेसीमिया। सो हम जब भी थैलेसीमिया मैनेजमेंट की बात करेंगे, हम हमेशा 3 बड़े पिलर्स की बात करेंगे जिस पे हम एक खूबसूरत सी बिल्डिंग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जिसके बारे में पिछले सेमिनार्स में हमने बात की है। दूसरा आयरन किलेशन, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ब्लड हम चढ़ा रहे हैं उससे जो एक्सेस आयरन हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है उसको हम निकालें। और तीसरा मॉनिटरिंग, कि ब्लड और आयरन के ज़रिए जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनको हम रूटीनली मॉनिटर करें। और आज इन तीनों में से हम एक पिलर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो है आयरन किलेशन। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आयरन किलेशन की जब हम बात करते हैं, आयरन किलेशन को करने के जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कब ये आयरन किलेशन शुरू करनी चाहिए, कौन सी दवाई से शुरू करनी चाहिए, विच ड्रग इज़ द बेस्ट वन फॉर माई चाइल्ड। अगर हम शुरू करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं, वेदर दिस ड्रग इज वर्किंग फॉर माई चाइल्ड, वेदर इट इज रिमूविंग द आयरन और नॉट। एंड इफ I've started a drug, is it okay, is it causing any adverse effects, क्या कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं मेरे बच्चे को जिसके लिए मुझे कुछ टेस्ट या कुछ भी चेकअप कराने की ज़रूरत है। डोज एडजस्ट कैसे करी जाए, जो डोज चल रही है वो सेम चलानी है, बढ़ानी है, घटानी है, उस डोज को किस पैरामीटर्स पे एडजस्ट किया जाए, और अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए। एंड फाइनली, क्या ये आयरन किलेशन कभी बंद किया जा सकता है, और अगर हाँ तो किन कंडीशंस में। सो आई विल ट्राई दैट ये जो सारे क्वेश्चंस जो सारे पेरेंट्स के और जिन बच्चों के दिमाग में चलते हैं उनको आज हम कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश करें, उनका कुछ हद तक जवाब देने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो सबसे पहला सवाल, आयरन किलेशन शुरू कब करना है। सो आयरन किलेशन शुरू करने के लिए जो थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन और डिफरेंट सोसाइटीज़ की गाइडलाइंस हैं, हम आयरन किलेशन स्टार्ट कर सकते हैं जब एक थैलेसीमिया मेजर के बच्चे को 10 से 20 ट्रांसफ्यूजन्स हो गए हैं, उसका सीरम फेरेटिन 1000 के ऊपर चला गया है, और ये सारे जो ड्रग्स हैं ये 1-2 साल से ऊपर के बच्चे के लिए अप्रूव्ड हैं। So when we can start once the child is 2 years, ferritin is more than 1000 and the child has received at least 10 transfusions. Next slide please. सो जब हम बात करते हैं कि कौन सा किलेटर हमारे बच्चे के लिए बेस्ट है, सो वी हैव टू रियलाइज दैट देयर इज नो वन किलेटर विच फिट्स ऑल। हम एक किलेटर सारे बच्चों के लिए एडवाइस नहीं कर सकते। एक बार जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हाँ अब इस बच्चे को ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ आयरन किलेशन की भी ज़रूरत है, दिस चाइल्ड नीड्स टू बी स्टार्टेड ऑन आयरन किलेशन, देन वी डू सम बेसलाइन टेस्ट। ये थोड़े से टेस्ट हैं जो हम करते हैं, जैसे लिवर के लिए SGPT, सीरम क्रिएटिनिन, विजन और हियरिंग इवैल्यूएशन, और एक बेसलाइन CBC। अगर ये सारे टेस्ट हमारे ठीक हैं तो हमारे पास 3 आयरन किलेटर्स अवेलेबल हैं। आप में से काफ़ी लोग जानते हैं डेस्फेराल, डेफ्रीप्रोन जो कि हमारे पास कैल्फर के नाम से आता है, और डेफ्रेसिरॉक्स जो बहुत सारे नाम से है, डेजीरॉक्स, डेफ्रीजेट, असुंड्रा, एंड देयर आर मेनी मोर न्यू वंस विच आर कमिंग, राइट। सो वी सिट डाउन विद द पेरेंट्स, वी टेल देम, हम पेरेंट्स के साथ बैठ के एक मीटिंग करते हैं, हम उन्हें हर मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट्स और उसके बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसका कॉस्ट बताते हैं, एंड देन वी ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन कि हम एक बच्चे को कौन सी दवाई पे शुरू कर सकते हैं जो कि उसके बॉडी को भी सूट करे, उस बच्चे के पेरेंट्स के पॉकेट को भी सूट करे, और एक ओवरऑल पूरे फैमिली को वो एक दवाई सूट करनी चाहिए। एंड देन वी स्टार्ट मॉनिटरिंग कि वो दवाई इफेक्टिव हो रही है या उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम हमारे पास 3 आयरन किलेटर्स अप्रूव्ड हैं फॉर यूज़। सबसे पहला, सबसे पुराना, और जिसको हम आज की डेट में भी गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, वो है डेस्पेरिऑक्सामिन। 1960 और 1970 के दशक में जब ये आयरन किलेटर शुरू हुआ था, दिस वाज शोन दैट जो बच्चों ने डेस्पेराल जल्दी शुरू किया उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो बहुत कम हुए, कार्डियक फेलियर के डेथ्स कम हो गए। बट इसके साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें इसे एक इंजेक्शन के तौर पे देना पड़ता है। एक इंजेक्शन जो एक नीडल एक छोटे से बच्चे की बॉडी में 8 से 10 घंटे रहती है, और एक कॉन्टिन्यूसली इंजेक्शन हफ्ते में 5 दिन, 5 days a week the child needs to
keep that needle in the body for at least 10 to 12 hours every day, it is a major side effect. And because of this, the compliance with desferrioxamine is pretty poor, right? And cost becomes another issue. For a child whose average weight is 30 kg, the cost for desferrioxamine for a month would be about 10,000 rupees, right? And this is just the injection. We have to calculate the cost of the pump, we have to calculate the cost of syringes and many other things that we use. Okay. The second drug which is available is डेफ्रीप्रोन. डेफ्रीप्रोन के अपने फायदे हैं कि डेफ्रीप्रोन ओरल दे सकते हैं, कार्डियक आयरन के लिए बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्लम आती है छोटे बच्चों में जो कि पूरा कैप्सूल स्वैलो नहीं कर सकते, उनको वो एक कैप्सूल का साइज बड़ा है, स्वैलो करने में प्रॉब्लम आती है। इसको 3 से 4 डोजेस में दिन में देना पड़ता है, तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं डोजेस मिस होने के चांसेस रहते हैं। एंड वन थिंग विच हैज़ बीन फाउंड विद लॉन्ग टर्म स्टडीज़ इज़ कि एक पेशेंट अगर कैल्फर काफ़ी टाइम से ले रहा है, डेफ्रीप्रोन काफ़ी टाइम से ले रहा है, तो अ लॉट ऑफ देम कंटिन्यू टू हैव हेपेटिक आयरन ओवरलोड, यानी कि लिवर आयरन के लिए शायद उतनी अच्छी ये ड्रग नहीं है, जो कि अब MRIs के रिपीटेडली होने से शायद ये बात सामने आ रही है। और एक जो सबसे बड़ा रिस्क इस ड्रग के साथ है कि बच्चे के WBC काउंट कम हो सकते हैं। कॉस्ट वाइज हमारे सब सोशो इकोनॉमिक क्लास के बच्चों के लिए बहुत सुटेबल है, 1000 रुपये का एक महीने का कोर्स आ जाता है। इसके बाद जो रिसेंटली सबसे नई ड्रग आई और जो आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स, अगर मैं 100 पेशेंट्स के साथ बैठ के ये डिस्कशन करती हूँ तो आई कैन से 99% पेरेंट्स यही कहते हैं कि हम डेफ्रासिरॉक्स शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, हम उसको पानी में घोल के दे सकते हैं, तो स्वैलो करने में, दवाई लेने में बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है। दिन में सिर्फ एक ही डोज देनी है, तो डोजेस मिस होने के चांसेस बहुत कम है। एंड इट इज़ गुड फॉर बोथ लिवर एंड दी हार्ट आयरन, बोथ लिवर और हार्ट से एफिकेसी जो है इसकी वो बहुत अच्छी है। एडवर्स इफेक्ट्स हैं, GI एडवर्स इफेक्ट्स, खासकर नोजिया, ब्लोटिंग, पेन एब्डोमेन, ये चीज़ें होती हैं। 10% बच्चों को तकरीबन रैश हो सकता है। एंड इस ड्रग के साथ रीनल डिसफंक्शन हो सकता है। जो भी बच्चा डेफ्रासिरॉक्स शुरू कर रहा है, किसी भी कंपनी की शुरू कर रहा है, उस बच्चे को अपना सीरम क्रिएटिनिन रूटीनली मॉनिटर करना ज़रूरी है। कॉस्ट विल डिपेंड कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। अगर आप रिसर्च मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा आ सकता है। अगर आप जेनेरिक्स ले रहे हैं तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही हैं बच्चों को। अदरवाइज द कॉस्ट वुड बी अबाउट 2000 रुपीज़ पर मंथ फॉर अ 30 kg child. Next slide, please. So after this discussion, as I said, most parents prefer डेफ्रासिरॉक्स these days for all the good effects it has. But बहुत बार ऐसा होता है, जो कि हमने प्रैक्टिस में भी देखा है, कि एक बारी हम डेफ्रासिरॉक्स शुरू कर देते हैं, साल भर तक हम उसका बच्चे का क्रिएटिनिन मॉनिटर नहीं करते हैं। सो दिस इज़ वन मैसेज दैट आई वांटेड टू पुट अक्रॉस कि अब आपका बच्चा अगर डेफ्रासिरॉक्स पे है, प्लीज़ उसका क्रिएटिनिन रूटीनली मेजर कराइए, सो दैट वी डोंट एंड अप विद रीनल कॉम्प्लिकेशन। हम लिवर हार्ट बचाते ऐसा ना हो कि बच्चे के किडनीज को कोई डैमेज हो जाए। अब हमने मेडिसिन स्टार्ट की, पेरेंट्स ने चूज़ किया कि वो कौन सी मेडिसिन शुरू करना चाहते हैं। हमने मेडिसिन जब स्टार्ट की, हमने नोट किया कि हमारा फेरेटिन, बच्चे का फेरेटिन, सीरम फेरेटिन 1000 के ऊपर है। तो अब हम इस दवाई की एफिकेसी को कैसे मॉनिटर करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 2 मेजरमेंट्स हैं। एक है सीरम फेरेटिन, जिसके बेसिस पे हमने अपनी आइनक्यूलेटर शुरू की थी, और दूसरा है T2 स्टार MRI। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो फेरेटिन के बहुत सारे फायदे हैं। फेरेटिन का सबसे बड़ा फायदा है कि अब कहीं पे भी अवेलेबल है। जैसे इस टाइम में अमृतसर में बैठे हो तो अमृतसर में सीरम फेरेटिन अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। 3 से 6 महीने में आराम से आप किसी भी लैब से करा सकते हैं। बट अगर हमें अमृतसर में किसी बच्चे का MRI कराना है तो उसको ट्रैवल करके दिल्ली जाना पड़ेगा और या PGI जाना पड़ेगा। सो इट इज़ द बेस्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। बहुत चीप है, कन्वीनियंट है करवाना। जब आप ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हैं, उसी टाइम एक सैंपल में, उसी प्रिक में आपका सीरम फेरेटिन भी हम कर सकते हैं। और जब हम उसको बार बार मॉनिटर करते हैं तो उसका जो ट्रेंड है कि फेरेटिन स्टेबल है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ये हमें बॉडी आयरन स्टोर्स के एक ट्रेंड का हमें आइडिया देता है कि जो बॉडी में आयरन है वो घट रहा है कि नहीं घट रहा है। बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे सीरम फेरेटिन हमें एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि लिवर में और हार्ट में कितना आयरन है। It cannot predict how much of body iron overload is there, especially some organs like heart. Okay, and serum ferritin infections में, inflammation में बढ़ जाता है। So अगर किसी बच्चे को फीवर, कॉफ, कोल्ड, डायरिया हुआ और आपने इमीडिएटली सीरम फेरेटिन कराया तो वो एक
फॉल्सली हाई वैल्यू आ सकती है और हमें उस वैल्यू पे अफरा तफरी में, जिसे हम कहते हैं कि एकदम से डोजेस चेंज नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम कुछ आती है हमारे हेपेटाइटिस के बच्चों में, जिनमें लिवर इन्फ्लेमेशन रहती है, लिवर में थोड़ी सी सोजिश रहती है, जिस करके सीरम फेरेटिन जो है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें बॉडी आयरन स्टोर्स की रिफ्लेक्ट नहीं करता, फॉल्सली हाई हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल है मैंने दिया कि ये एक बच्चे का चार्ट है जो हम मेंटेन करते हैं कि इस बच्चे का फेरेटिन 8000 था, हमने इनको एक मेडिसिन शुरू की, ये डोज है। सो जैसे जैसे हमारा सीरम फेरेटिन बढ़ घट रहा है, द डोज एडजस्टमेंट्स दैट वी आर डूइंग आर मॉनिटर्ड, आर मेंशन्ड। सो दैट दिस इज समथिंग आई वुड रिकमेंड टू ऑल पेरेंट्स दैट कीप अ रिकॉर्ड सो दैट वी अंडरस्टैंड कि क्या ट्रेंड है सीरम फेरेटिन का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सी। सो अगर तो ये बच्चे का सीरम फेरेटिन घट रहा है, इसका मतलब है ये एक अच्छा साइन है कि बच्चे का आयरन बर्डन कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो दिस मे इंडिकेट, इसका ये हो सकता है मतलब कि सीरम फेरेटिन बढ़ रहा है, प्रोवाइडेड उस टाइम पे बच्चे को कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर स्टेबल है तो फिर उस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि घट नहीं रहा। वी नीड टू कीप मॉनिटरिंग एंड देन टेक अ कॉल विद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स कि क्या हमारे बच्चे का एग्जैक्ट स्टेटस है। सो रेगुलर मॉनिटरिंग हैज टू बी डन in context of what is the dose which is going on and in context of other infections and inflammations going on. Next slide please. राइट, सो फिर हम बात करते हैं एमआरआई की। एमआरआई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको एग्जैक्टली टिश्यू आयरन बता रहा है कि अगर हम लिवर की बात कर रहे हैं तो लिवर में कितना आयरन है। इससे आपको फायदा ये रहेगा कि अगर किसी को हेपेटाइटिस है या कोई इन्फेक्शन है, एमआरआई उससे इफेक्ट नहीं होगा। प्रॉब्लम्स हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, अबाउट 4000 रुपीज़ पर एमआरआई होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, कई लैब्स कर रही हैं बट वो उतना स्टैंडर्डाइज नहीं है, हम उन पे उतना रिलाई नहीं कर सकते। एंड अगर हम लिवर कर रहे हैं तो हम हार्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अगर हम हार्ट कर रहे हैं तो हम लिवर आयरन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें दोनों लिवर और हार्ट के स्कैन्स चाहिए to know what is the exact status of each organ. Next slide please. Okay, so this is just one example. अगर आप ये देखें, अगर किसी बच्चे का MRI T2 स्टार में जो वैल्यू है वो 6 मिलीसेकंड से कम है, there is almost a 50% चांस उस बच्चे को there is a 50% चांस कि आने वाले 1 साल में हार्ट फेलियर हो सकता है। सो इस हार्ट MRI से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमें ये 1 साल का विंडो पीरियड मिल गया है जहाँ पे हम अपना किलेशन बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिफाई कर सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर चौधरी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक बार हार्ट फेलियर हो जाए हम किलेट कर सकते हैं बट कुछ डैमेज रह जाता है। सो अगर आप इस स्टेज पे इंटरवीन करते हैं तो शायद हम उन कॉम्प्लिकेशन से बच्चे को बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी सेड कि जब तक यूके में MRIs नहीं हो रहे थे, आप ये देखिए ये जो सारे रेड कलर के बार में नंबर ऑफ डेथ्स हैं, दे वर हैपनिंग, ये सारे थैलेसीमिया बच्चे और थैलेसीमिया पेशेंट्स हम खो रहे थे बिकॉज ऑफ आयरन ओवरलोड इन द हार्ट। बट MRI इंट्रोड्यूस होने से ये जो रेड बॉक्स है ये इतना कम हो गया बिकॉज हम अब पहले पता कर लेते हैं कि MRI में हार्ट में आयरन है और हम अपना जो किलेशन है वो इंटेंसिफाई कर सकते हैं, किलेशन बढ़ा सकते हैं और इतनी जानें हम हर साल बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो अभी हमने ये देखा कि जो पीछे हमने एक ग्राफ देखा था कि अगर सीरम फेरेटिन घट रहा है तो हम सब बहुत खुश हैं कि बच्चे का जो आयरन है बॉडी में वो कम हो रहा है। तो अगर आपका सीरम फेरेटिन 1000 के बिलो चला जाता है तो हमें डोजेस कुछ हद तक कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब फेरेटिन की वैल्यू लो हो जाती है उस टाइम पे किलेटर की टॉक्सिटी यानी कि ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सीरम फेरेटिन बढ़ रहा है या कि स्टेबल है तो फिर हमें चेक करना है कि हमारा जो बच्चा है वो मेडिसिन ठीक से ले रहा है। पिल्लों के नीचे तो मेडिसिन नहीं मिलती, एंड अगर हमारी डोजेस कम चल रही हैं क्या हम उनको बढ़ा सकते हैं, कैन वी गो टू द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स। एंड देन वी कैन ऑल्सो लुक एट द MRI टू अंडरस्टैंड कि फेरेटिन तो ज़्यादा है बट व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड्स लिवर, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड्स हार्ट एट दैट टाइम। Next slide please. So this is just what I was telling you. Next slide. ओके, सो ये बात हुई हमारी एफिकेसी की कि अगर फेरेटिन बढ़ रहा है घट रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। फिर एक बात आती है एडवर्स इफेक्ट्स की। नेक्स्ट स्लाइड।
सो डेस्पेराल का जैसे कि आई थिंक वील स्टार्ट विद डेफ्रासिरॉक्स बिकॉज ये सबसे कॉमन ड्रग है जो कि हमने बात की कि 90% से ज़्यादा पेरेंट्स यही शुरू करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आते हैं नोजिया, वॉमिटिंग और पेन एब्डोमेन, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये कॉमन है, बट इनके हम थोड़ा सा ड्रग कम करके, थोड़ा सा स्लोली इंक्रीज करके, कुछ antacids, कुछ probiotics देके, these can be managed by just consulting your doctor. These are not serious side effects. जो सबसे serious side effect है वो है क्रिएटिनिन का बढ़ना, यानी कि किडनी जो फंक्शन टेस्ट है उसका बढ़ना। और इसीलिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई बच्चा डेफ्रासिरॉक्स पे है, आइडियली मंथली उसका सीरम क्रिएटिनिन होना चाहिए, ताकि वी आर श्योर दैट दिस ड्रग इज नॉट कॉजिंग एनी एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। So this is what you need to do, monitor serum creatinine, first 1 month में weekly and then monthly. इसके साथ में थोड़ा सा SGPT को भी मॉनिटर, जो लिवर के ट्रांसअमाइनेसेस है उसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है, एंड 1 साल में एक बार विजन और हियरिंग इवैल्यू। ये साइड इफ़ेक्ट्स इनके साथ में उतने कॉमन नहीं हैं जितने डेस्पेराल के साथ में है, बट स्टिल वी नीड टू मॉनिटर विजन एंड हियरिंग एवरी ईयर विद डेफ्रासिरॉक्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो जब आपने डेफ्रासिरॉक्स लेनी है, ये उन सारे पेरेंट्स के लिए है कि आपने डेफ्रासिरॉक्स, पहले हम बहुत स्ट्रिक्टली कहते थे कि एम्प्टी स्टमक लेनी है। अगर एम्प्टी स्टमक आपके बच्चे को सूट कर रही है ठीक है, नहीं कर रही है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, और हम मील्स के बाद भी दे सकते हैं। उसको चबाना नहीं है, तोड़ना नहीं है, पानी में या ऑरेंज जूस में डिस्पर्स करना है, घोलना है अच्छे से। तकरीबन 100 से 200 ml पानी, छोटो बच्चों के लिए हम अबाउट 50 to 100 ml में डिसॉल्व कर सकते हैं। दूध में नहीं, किसी कार्बोनेटेड पेप्सी, कोका कोला, लिम्का, इन तरीके की ड्रिंक्स में नहीं सस्पेंड करना है। आपने जब उसको घोलना है, मेक श्योर कि आप कोई भी मेटल की, कोई भी तांबे की चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई प्लास्टिक का चम्मच और ग्लास कंटेनर और अ प्लास्टिक कंटेनर हैज़ टू बी यूज्ड। एक बार आपने उसको घोल लिया, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करिए। घोल के छोड़ मत दीजिए कि वो कई कई घंटे पड़ी रहे, बिकॉज देन इट विल नॉट बी इफेक्टिव। एंड जब आपने बच्चे को दवाई पिला दी तो थोड़ा सा और जो भी जूस, पानी जिसमें आपने सस्पेंड किया था उसको डाल के, जितनी भी दवाई साइड में लगी रह गई है उसको भी घोल लीजिए और वो भी बच्चे को दे दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो नेक्स्ट इज, अगर ये एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं तो हमने इसको कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि बच्चे को हो सकता है कि डायरिया हो, पेन, पेट में दर्द हो, या नाउजिया, वॉमिटिंग हो, तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये माइनर चीज़ें हैं, थोड़े बहुत पेन किलर, पेन रिलीफ के लिए पेन मेडिकेशंस भी दी जा सकती हैं, बट दीज आर नॉट सीरियस साइड इफेक्ट्स। जस्ट कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड इट विल बी सॉर्टेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किडनी फंक्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर किडनी फंक्शंस बढ़ते हैं तो डोज कम करने की या डोज इंटरप्ट करने की ज़रूरत रहेगी। दैट इज़ व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग इट एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज दिस इज़ वन थिंग आई हैव नोटिस कि ये नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एंड अगर किसी बच्चे का जो डेफ्रासिरॉक्स पे है, SGPT बढ़ रहा है या जॉन्डिस हो रहा है, तो भी उनके डोजेजेस जो हैं वो हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, सो आप सब जानते हैं अब डेफ्रासिरॉक्स की एक नई फॉर्मुलेशन आ गई है जिसको हम कहते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट और डेफ्रासिरॉक्स सिंपल टैबलेट में जो दवाई है वो सेम है, बट उनका जो कॉम्पोजिशन है, दवाई देने का, दवाई बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फिल्म कोटेड टैबलेट का जो मेन जो उसकी अच्छी बात है वो ये है कि उसको आपको डिस्पर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप डायरेक्टली एक टैबलेट जैसे रूटीनली हम लेते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं, वैसे हम उसको ले सकते हैं। बच्चों को हम उसको क्रश करके थोड़े से पानी में जस्ट 1 or 2 स्पून्स ऑफ पानी में घोल के दे सकते हैं। डाइट के साथ में इस फिल्म कोटेड टैबलेट का ज़्यादा कोई इंटरेक्शन नहीं रहता है, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बिकॉज इट्स अ फिल्म कोटेड टैबलेट, हमें उसका डोज कंपेयर टू अ नॉर्मल डेफ्रासिरॉक्स टैबलेट थोड़ा सा कम करना रहता है। सो द डोज विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द नॉर्मल डेफ्रासिरॉक्स डोज। सो वो डोज हमें देखना ज़रूरी है। एंड अगर हमने जिन कंट्रीज में ट्रायल्स हुए उनमें से अगर पूछा गया कि वो कौन सी टैबलेट को प्रेफर करेंगे, सो मोस्टली patients felt that the film coated tablet is better. उनके डोजेस कम मिस होते हैं, उनको लेना ज़्यादा आसान रहता है, and it is easier to take, right? Next slide please.
अब हम आते हैं कैल्फर पे। कैल्फर के जो मेजर 2 साइड इफेक्ट्स हैं वो है आपका न्यूट्रोफिल काउंट, यानी कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं, वो कम करना, और जॉइंट पेन। सो अगर आप किसी भी बच्चे को ये 2 साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, वी मे हैव टू रिड्यूस कैल्फर। अगर वाइट सेल काउंट कम है और उसका कोई और रीजन नहीं है, रिमेंबर दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर फर्दर यूज। हम दोबारा कैल्फर से रीचैलेंज नहीं कर सकते उस बच्चे को। ऑल्दो जॉइंट पेन्स अगर हैं तो हम थोड़ी देर बंद करके कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट करके वी कैन स्टार्ट एंड वी कैन ट्राई गिविंग डेफ्रिप्रोन अगेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो फाइनली डेस्पेरिऑक्सामीन का, क्योंकि आप सब जानते हैं इट्स एन इंजेक्शन, सो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लोकल साइट पे जो पेन टेंडरनेस होती है। जो सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं वो हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, यानी कि बच्चों के कानों पे असर, एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस। एंड ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये ज़्यादा कॉमन होते हैं अगर हमारा फेरेटिन कम हो। सो रिमेंबर कि अगर बच्चे का फेरेटिन कम हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है डेस्पेराल की डोजेजेस को एडजस्ट कराना। गो विजिट योर डॉक्टर, meet them and talk to them about the dosages, because low ferritin पे डेस्पेराल के टॉक्सिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो डेस्पेराल के साथ एक जो मेजर इफेक्ट, अगर आप छोटे बच्चों में यूज कर रहे हैं डेस्पेराल तो उनकी ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, एंड आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट इन डिटेल व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बोन हेल्थ आल्सो। नेक्स्ट स्लाइड। And we need to do a yearly auditory and visual examination in any child who's on Desperal, right? कॉम्बिनेशन थेरेपीज बहुत सारे बच्चे आजकल यूज कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, डेस्पेराल के साथ कैल्फर और कैल्फर के साथ डेफ्रासिरॉक्स। सो देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस व्हिच मे बी ट्राइड, बट रिमेंबर कॉम्बिनेशन का सवाल तब आता है जब हमारा एक ड्रग इफेक्ट नहीं कर पा रहा, हम मैक्सिमम डोजेजेस पे अपनी मेडिसिन प्रॉपरली ले रहे हैं, मिस नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि सेकेंड ड्रग ऐड करने का कोई रोल है। एंड सेकेंड कि हम एक ड्रग ले रहे हैं उसका अगर हम डोज इंक्रीज करते हैं तो हमें साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, वी आर नॉट एबल टू गो टू द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट, देन वी ऐड ऑन अ सेकेंड ड्रग, फिर हम एक सेकेंड ड्रग ऐड करते हैं। या फिर इमरजेंसी केलेशन में जब किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रहा है तब डेस्पेराल विद कैल्फर का कॉम्बिनेशन इज सपोज्ड टू डू बेटर देन ईदर ड्रग अलोन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किलेशन बंद कर सकते हैं, ये हमारा एक फाइनल सवाल था। किलेशन बंद कर सकते हैं अगर फेरेटिन 500 के कम हो, बट रिमेंबर कि अभी आप किलेशन बंद करेंगे फिर ब्लड लगेगा फिर फेरेटिन बढ़ जाएगा, तो ये हम कभी ऑन ऑफ की जगह बेटर है कि हम किलेशन कंटिन्यू रखें बट डोजेजेस एडजस्ट कर लें। जब हमारा सीरम फेरेटिन 500 से कम है तो वी रिड्यूस द डोजेजेस टू 5 to 10 mg per kg राउंड ऑफ करके, so that there is a continuous level of chelator which is available in the body rather than this on off kind of thing. Okay, next slide please. अब बात करेंगे एक स्लाइड में उन बच्चों के लिए जो नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया के हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया में आयन किलेशन हमें चाहिए होता है अगर बच्चों का फेरेटिन 800 के ऊपर हो। अगर फेरेटिन 300 से 800 के बीच में है देन वी शुड डू LIC, हमें एक MRI 10 साल की उम्र में करके देखना चाहिए। एंड देन वी कैन यूज डेफ्रासिरॉक्स विच इज़ अ सेफ ड्रग, सिंगल डोज है जो कि हम बेनिफिट्स उनके इस ड्रग के इतनी देर से डिस्कस कर ही रहे हैं। बट रिमेंबर द डोजेजेस इन NTDT आर लो, वी कैन गो अप टू 20 mg per kg per day। एंड कई बार NTDT के बच्चों में सीरम फेरेटिन एग्जैक्टली हमें अंदर बॉडी आयरन स्टोर का अच्छे से अंदाज़ा नहीं लगने देते है सीरम फेरेटिन, तो हम ये चाहेंगे कि जो भी बच्चे NTDT के 10 साल से ऊपर हैं एटलीस्ट एक बेसलाइन एक लिवर आयन कॉन्सेंट्रेशन अपना देख लें ताकि उस हिसाब से हम आयन किलेशन उनका एडजस्ट कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इस सब के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम पेशेंट्स को देखें जो अपना आयरन किलेशन अच्छे से लेते हैं वर्सेस जो अपना आयरन किलेशन अच्छे से नहीं लेते, तो जो बच्चे अपना आयरन किलेशन अच्छे से लेते हैं देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल कि वो अपना 30 इयर्स के बियॉन्ड भी अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करें वो मोर देन 90% है कंपेयर टू ओनली 15% टू पेशेंट्स जो अपनी मेडिसिन ठीक से नहीं ले रहे हैं। एंड अगर आप इस टेबल में देखेंगे उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जितने भी परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू पेशेंट्स हु आर नॉट टेकिंग देयर मेडिसिन वेल। ठीक है,
नेक्स्ट प्लीज. सो एट द एंड आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि किलेशन है, दवाइयाँ हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप वो दवाई लें. डॉक्टर चौधरी मेडिसिन रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर खन्ना करते हैं, मैं करती हूँ, हम सब मेडिसिन लिख सकते हैं बच्चे, लेकिन मेडिसिन लेना आपको है. सो दिस इज़ वन थिंग विच यू नीड टू इंश्योर कि आई थिंक वी आर वेरी लकी इन दिस एरा कि हमारे पास ओरल मेडिसिन अवेलेबल हैं, एंड इफ़ वी टेक आर ओरल मेडिसिन वेल, आई थिंक वी विल नॉट नीड अ पेरेंट्रल, हमें इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट प्लीज. So I think that's it for today. Thank you everybody, and just a reminder to all patients, please remember to take your chelation daily. Thank you Dr. Arora, thank you Dr. Khanna, for Dr. Chaudhary for giving me this opportunity. Over to Dr. Rajiv Bansal, please. Please introduce Dr. Nathani. Dr. Bansal? I think he is not there. Dr. Rajiv Bansal? Not there. Okay. Dr. Kungar, then you introduce Dr. Rahul Nathani, please. Dr. Rahul Nathani. He is DM in clinical hematology from AIIMS. He is Director Hematology and BMT at Max Hospital, Saket. Over to Dr. Rahul Nathani. So good afternoon, everyone. I hope my slides are visible. Yes, sir. Yeah. Yes, तो please. आज हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, जो है बोन हेल्थ. हम हमेशा थैलेसीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, आयरन केलेशन की बात करते हैं, और ये दोनों सेंट्रल पिलर हैं एक बच्चा जिसको थैलेसीमिया है, ताकि वो पूरी लाइफ अपनी अच्छी जिए. पर इसके अलावा अब क्योंकि हेल्थ सिस्टम में थोड़े सुधार आए हैं, थोड़ी दवाइयाँ आई हैं, जैसे जैसे हमारे बच्चों का जीवन और बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि आगे अब और हम प्रॉब्लम्स, इश्यूज फेस कर रहे हैं. अगर हम सरल तौर पे देखें तो ये एक बोन है जो एक नॉर्मल हड्डी होती है, और ये एक बोन है जो एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, जिसमें काफी सारी खोखली हो गई है बोन. और अगर हमारी हड्डी का जो मेन काम है बॉडी को स्ट्रेंथ देना, शेप देना, अगर ये ऐसे खोखली हो जाए तो हमें आगे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. सो बोन एबनॉर्मेलिटीज जो हैं थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिएट दोनों में काफी कॉमन है. जब हम बच्चों का सिलसिलेवार एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके बोन मिनरल डेंसिटी कम है. हम देख रहे हैं कि उनमें अपने आप से फ्रैक्चर हो रहे हैं, चोट लगने के बाद तो हो ही रहे हैं, अपने आप भी फ्रैक्चर हो रहे हैं, और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज अब हमने देखनी शुरू कर दी हैं, और इन सब के कारण बच्चे को बहुत परेशानी होती है. ये एक नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी है, और एक नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी एक 30 साल की युवती का जो एक बोन की स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से कंपेयर किया जाता है. कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं. यदि अगर मेरी बोन मिनरल डेंसिटी उस 30 ईयर ओल्ड एडल्ट फीमेल से 1 से 2.5 तक है, हम लोग इसे कहते हैं ऑस्टियोपीनिया, या बोन मिनरल डेंसिटी मेरी कम है, और अगर ये -2.5 से नीचे वो स्कोर चला जाता है तो हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो गया. ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप में एक डिजीज एंटिटी है जिसका अपना ट्रीटमेंट करना होता है, इसके साथ फ्रैक्चर्स और बाकी संभावनाएं काफी बढ़ जाती है. तो ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक स्केलेटल डिजीज है जिसमें हमारे हड्डी का वजन, मास कम हो जा रहा है. हमने दिखाया था हड्डी थोड़ी खोखली होती जा रही है, थोड़े से माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरेशन होते हैं. बोन मेरी स्ट्रॉन्ग की बजाय फ्रेजाइल हो जाती है, जिससे उसमें पेन होता है और फ्रैक्चर हो सकते हैं. इसके बहुत सारे कारण हैं. अगर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन अच्छे से नहीं मिल रहा तो बोन मैरो एक्सपैंड हो जाता है. हम जो आयरन किलेटर, आयरन खुद टॉक्सिसिटी करता है, कुछ आयरन किलेटिंग एजेंट्स जो हैं बोन फॉर्मेशन में दिक्कत कर सकता है. तो बहुत सारे तत्वों के मिश्रण से ये इवेंचुअली डिजीज इवॉल्व होता है. कुछ जेनेटिक कॉजेस होते हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हुए भी किसी बच्चे को होगा, किसी को नहीं होगा या कम होगा. इसमें एक कोलेजन 1A जीन का पॉलीमॉर्फिज्म है, एक विटामिन डी रिसेप्टर का पॉलीमॉर्फिज्म है, और एक हमारी नॉर्मल प्यूबर्टी नहीं आ रही या कितनी देर से आ रही है. और क्योंकि प्यूबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो पीक बोन मास है, हम 30 साल की एज तक पीक बोन मास अचीव करते हैं, 20 साल की एज तक पीक बोन मास अचीव करते हैं, और 30 के बाद हम उसको खोना शुरू करते हैं.
तो अगर हमें प्यूबर्टी समय से मिलती है तो हम पीक बोन मास, हमारी बोन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक ले जा सकते हैं। सो बर्डन ऑफ द डिजीज, ये बीमारी कितनी कॉमन है? बोन में, हड्डियों में कमजोरी थैलेसीमिया के बच्चों में कितनी कॉमन है? अगर हम अंतरराष्ट्रीय डेटा देखें तो कौन सी स्टडी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो 40 से 50 से लेकर 70 से 80% तक है। एम्स में हमने डॉक्टर वीपी चौधरी की गाइडेंस में एक ये स्टडी करी थी करीब 10 साल पहले, जिसमें हमने देखा कि हमारे थैलेसीमिया सेंटर में जो बच्चे ट्रांसफ्यूजन लेने आ रहे हैं उनकी बोन हेल्थ कैसी है। हमने 40 बच्चों को इनरोल किया जिसमें 26 मेल्स थे, एवरेज एज 19.5 ईयर्स थी। आप देखेंगे कि मीन वेट हमारा कम था, स्टडी पॉपुलेशन का 44 केजीज था, लिवर 6 सेंटीमीटर एनलार्ज थी और स्प्लीन 6 सेंटीमीटर बड़ी थी, यानी कुछ की इससे ज्यादा रही होगी, कुछ की इनसे कम रही होगी। बट ये हमारी थैलेसीमिया पॉपुलेशन है और ये हमारी ग्राउंड रियलिटी है इंडिया में। ऑफ कोर्स वी हैव पेशेंट्स हु आर वेल मैनेज्ड, बट अधिकतर हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स में ये कमियां मिल जाती है। 11 पेशेंट्स के हम स्प्लीन की सर्जरी हो चुकी थी, 3 पेशेंट्स का हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, 23 पेशेंट्स का हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था, 3 पेशेंट्स उस समय HIV पॉजिटिव थे जब ये स्टडी चल रही थी। एवरेज आयरन ओवरलोड बहुत ज्यादा था। अभी हमने पिछले वक्ता से सुना कि हमें आयरन कम करना चाहिए। हमारा सीरम फेरेटिन एवरेज 4100 के आसपास था। कैल्शियम लेवल भी लोअर साइड पे थे, 8.7, फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये नंबर्स हैं। हमने बच्चों से पूछा उनको कितना पेन होता है, और जनरली पेन का परसेप्शन जानने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि हम उनको विजुअल एनालॉग स्केल दे दें। विजुअल एनालॉग स्केल जो है 0 से 10 तक का स्कोर होता है। 0 का मतलब कोई दर्द नहीं, 10 का मतलब एक्सक्रूशिएटिंग पेन, मेरी जान निकल जाएगी। जब हम हर एक बच्चे को ये स्केल दिया तो हमने देखा करीब 80% बच्चों ने बोला उनको किसी तरीके का कोई पेन नहीं होता। 2.5% एक बच्चे ने बोला कि मेरा पेन स्कोर 1 है, मैं पूरा नॉर्मल थी बट थोड़ा सा शायद है। 5% बच्चों ने पेन स्कोर 3, 4 और 5 बताया। 5 के ऊपर पेन स्कोर किसी भी बच्चे ने हमें नहीं बताया। ये जो पेन स्कोर को जो हमने कोरिलेट करना चाहा उनकी एज से, आयरन ओवरलोड से, बाकी पैरामीटर से, किसी से इसका कोरिलेशन नहीं बना। तो 40 में से केवल 7 बच्चों ने बताया कि उनको पेन था। हमने जब फ्रैक्चर्स का स्टडी किया तो स्टडी में हमने हिस्ट्री लिया, पहले कभी फ्रैक्चर हुए। हमने देखा 7 पेशेंट्स को टोटल 10 फ्रैक्चर एपिसोड्स हो चुके थे। 6 पेशेंट्स को फ्रैक्चर्स की हिस्ट्री थी जब तक हमारे पास आए। और आप देखिए एवरेज एज हमारे पास 19 साल है, 19 साल से पहले की एज में फ्रैक्चर्स हो रखे हैं। और जब ये हमारी स्टडी जो करीब 1.5 साल तक चली थी उस दौरान एक बच्चे को और फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर जनरली कोई ना कोई चोट लगी तभी हो रहा था, और 3 पेशेंट थे जिनको 2 फ्रैक्चर्स हुए। ये एवरेज एज है, हम देखेंगे इसमें सबसे कम एज जो है वो 16 साल की है। और अधिकतर जो फ्रैक्चर हो रहे हैं वो हाथ की हड्डियों में, रेडियस, अल्ना, या जो पैर की उंगलियां हैं मेटाटार्सल बोन्स, वहां हो रहे थे, या एंकल में हो रहे थे। ट्रॉमा, बच्चा दौड़ते हुए गिर गया, दौड़ते हुए गिर गया। सिर्फ एक बच्चे की हिस्ट्री थोड़ी सी अजीब सी कि सोते समय मैंने रात को तकिए के नीचे अपना हाथ मोड़ के रखा और मुझे कड़क से आवाज आई। एक हेयरलाइन फ्रैक्चर था, ट्विस्टिंग ऑफ फुट। सो बेसिकली कोई ना कोई इंजरी हो रही है, बट इस तरह की इंजरी आम जीवन में बहुत कॉमन है, सबको फ्रैक्चर्स होते नहीं है। पेन स्कोर जरूरी नहीं है कि फ्रैक्चर था तो आपको पेन होता ही था, या पेन नहीं होता था तो आपको फ्रैक्चर नहीं होगा। तो पेन एक डिफरेंट कंपोनेंट है और फ्रैक्चर एक डिफरेंट कंपोनेंट है। इनमें से जितनों की हमारे पास बोन मिनरल डेंसिटी अवेलेबल थी, इसमें से अधिकतर को ऑस्टियोपोरोसिस था, एक बच्चे को ऑस्टियोपीनिया था। अगर हम इनकी बोन मिनरल डेंसिटी की बात करें तो एवरेज हमारा जो जेड स्कोर था, जब 20 साल से नीचे बच्चा होता है तो हम जेड स्कोर यूज करते हैं क्योंकि पीक बोन मास तब तक अचीव नहीं हुआ है, और 20 साल के बाद टी स्कोर्स यूज किए जाते हैं जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस क्वालिफाई करते हैं। तो हमारा जो लंबर में जो जेड स्कोर आया वो -2.6 आया। हमारे पास फोर आर्म के अवेलेबल नहीं क्योंकि एज मैच कंट्रोल इस समय अवेलेबल 20 साल से नीचे पे डेटा अवेलेबल नहीं था। यही डेटा अगर हम 20 साल से ऊपर के बच्चों का देखें तो हम देखें हमारे जो एवरेज टी स्कोर हैं वो लंबर एरिया में -1.8, हिप एरिया में 1.7 माइनस, और टोटल जो स्कोर आ रहा था वो -3.6 आ रहा था। यदि मैं इस डेटा को 20 साल से कम और 20 साल से ऊपर में विभाजित करूं, क्योंकि 20 साल में पीक बोन मास अचीव होता है, तो 20 साल से नीचे में 15 बच्चे यानी 75% बच्चों की बोन मिनरल डेंसिटी कम थी। और बोन मिनरल डेंसिटी जिनकी फोर आर्म में कम थी, और फोर आर्म वाज द वीकेस्ट एरिया वेदर लेस देन 20 और मोर देन 20, वो हाइपोगोनाडिज्म जिनके ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह की डेफिशिएंसी थी, हाइट कम थी, वेट कम थी, उनके में फोर आर्म की बोन मिनरल डेंसिटी हमें कम देखने को मिली।
जो लंबर एरिया जिसको हम नॉर्मली बैक बोलते हैं, वहां पे जो बोन मिनरल डेंसिटी कम थी वो किसी फैक्टर से रिलेट नहीं करी। जब मैं 20 साल से ऊपर के बच्चों का कोहर्ट देखूं तो सभी बच्चों की बोन मिनरल डेंसिटी कम थी। इसमें से 85% को तो फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस था जहां मेरे टी स्कोर -2.5 से कम थे, और 3 बच्चों को ऑस्टियोपीनिया था, बट कुल 20 के 20 बच्चों को लो बोन मिनरल डेंसिटी थी। और इस केस में हमारा जो लंबर रीजन और हिप रीजन की बोन मिनरल डेंसिटी थी वो हाइपोगोनाडिज्म, जिनमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, उनमें ज्यादा था। यदि हम हेपेटाइटिस सी से कोरिलेट करें तो हिप स्कोर के साथ थोड़ा सा वो कोरिलेट कर रहे थे, पर लड़का है या लड़की है या आयरन ओवरलोड, इसके साथ बोन मिनरल डेंसिटी हमारी कोरिलेट नहीं है। तो हमें बोन मिनरल डेंसिटी, अब हमें पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया या बोन मिनरल स्ट्रेंथ पर से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी हेल्थ का, हमारी हड्डियों की हेल्थ का। हमें क्या क्या जांचें उसके लिए करनी चाहिए। आजकल तो अब सेट प्रोटोकॉल्स हो गए हैं, तो अधिकतर थैलेसीमिया सेंटर में ये वैसे ही हो जाते हैं। तो एक हमें बोन प्रोफाइल करनी होती है। बोन प्रोफाइल में क्या आएगा? सीरम कैल्शियम, फॉस्फेट, विटामिन डी, पैराथायरॉइड हार्मोन लेवल्स। हमें एंडोक्राइन डेफिशिएंसी देखनी, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, एफएसएच, एलएच हार्मोन, थायराइड प्रोफाइल। विटामिन डी हमारे देश में अधिकतर लोगों को कम होता है, तो जब भी हमें कम मिले हमें उसको सप्लीमेंट करना है। लिवर फंक्शन टेस्ट हमें करने हैं, स्पाइनल एक्सरेस करने हैं, हमें डीएक्सए स्कैन्स करने हैं, जनरली हिप के, रेडियस के और स्पाइन के, और आयन ओवरलोड के जो मार्कर हमारे पास सुविधा हो उसको हमें करना है। हम अर्ली बोन लॉस से बचे कैसे, हमें पता ये चीज होती है, हम कैसे इस चीज से बच सकते हैं। एक हमारी एक बार जब एडोलेसेंट फेज में हम आ गए, साल में एक बार हम बोन मिनरल डेंसिटी कराएं। इसमें कोई रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं होता, ये अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह है। लेटते हम सीटी मशीन की तरह, बट द प्रिंसिपल इज मोर अल्ट्रासाउंड काइंड ऑफ थिंग। फिजिकल एक्टिविटी हमें एनकरेज करनी है, स्पेशली लॉकडाउन में बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो गई होगी। स्मोकिंग नहीं करनी है। यदि हमें डायबिटीज बन रही है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करें। आयन किलेशन, आयन किलेशन, आयन किलेशन द सेंट्रल पिलर ऑफ द थैलेसीमिया थेरेपी। हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडिक्वेट रखने हैं, हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर रखना है ताकि हमारी ग्रोथ हो, और जो कम हीमोग्लोबिन या कम ट्रांसफ्यूजन से बोन मैरो एक्सपेंशन होता है उससे हम बच सकते हैं। एक बार जब हमें पता चला कि हमने सारी प्रिकॉशंस हम नहीं ले पाए, हमसे मिस हुआ, या हमने किया उसके बाद भी अगर हमारी बोन मिनरल डेंसिटी कम है, अच्छी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट करेंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट की यदि आवश्यकता है हम एंडोक्राइनोलॉजी असेसमेंट करके हम उसको करेंगे। एंटी रिजॉर्प्टिव एजेंट जिसको हम बिस्फॉस्फोनेट्स कहते हैं, इसके बारे में और बात करूंगा, हम उस थेरेपी के बारे में बात करेंगे। जो बिस्फॉस्फोनेट्स थेरेपी है, बेसिकली हड्डी का जो बैलेंस है, रोज थोड़ी हड्डी बनती है, थोड़ी हड्डी डिसॉल्व होती है। थैलेसीमिया में हड्डी बनने की प्रक्रिया में उतना नुकसान नहीं होता, थोड़ी सी कम होती है, लेकिन हड्डी गलने की प्रक्रिया में नुकसान काफी होता है। इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है, हड्डी गलने से रोका जा सकता है। बिस्फॉस्फोनेट, पैमिडोनेट, जोलिड्रोनिक एसिड, एलेंट्रोनेट, आप में से कुछ लोगों को ये ऑलरेडी इस समय चल रही होगी। जनरली जो बिस्फॉस्फोनेट्स थेरेपी की जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 साल तक होती है, उससे ज्यादा देना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर इसकी लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी का रिस्क आता है। हमें विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट रेगुलरली करना होता है। हम एक बिस्फॉस्फोनेट देना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं जोलिड्रोनिक एसिड। जोलिड्रोनिक एसिड की जो डोज है वो यूजुअली 0.05 मिलीग्राम पर केजी एवरी 6 मंथ्स चलती है। जस्ट अब बाद में कर लेंगे। जो हम बिस्फॉस्फोनेट्स दे रहे हैं इसकी ड्यूरेशन 2 से 3 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट करना चाहिए, और मैं जोलिड्रोनिक पे आगे और बात करूंगा। फिर हमने जब देखा, डॉक्टर चौधरी ने कहा था कि हमने ये पकड़ तो लिया है कि है, हमें जानना चाहिए हम इसमें ट्रीटमेंट करें, कैसे करें। और ये वो समय है जब हमारे प्रोफेसर चौधरी एम्स छोड़ के ऑलमोस्ट जाने वाले थे, पर उनका पूरा ध्यान था कि ये स्टडी हमें पूरी करनी है। फिर हमने एक जोलिड्रोनिक एसिड दिया जिन भी बच्चों में लो बोन मिनरल डेंसिटी हमारी आ रही थी। हमने कुल 40 पेशेंट्स को एनरोल किया, जैसा कि मैंने पहले बताया था। हमने पाया कि 35 पेशेंट्स की बोन मिनरल डेंसिटी कम थी। इसमें से 27 पेशेंट एलिजिबल हुए जोलिड्रोनिक एसिड के ट्रीटमेंट के लिए। इन सब का हमने सेफ्टी एनालिसिस किया। पहले 9 पेशेंट्स को हमने, उस समय डेटा था कि जोलिड्रोनिक एसिड हमें 4 मिलीग्राम की डोज में हर 3-3 महीने में थैलेसीमिया में देनी चाहिए 1 साल तक। हमने जब 4 मिलीग्राम की डोज, जब तक हम पहले 9 पेशेंट हमने एनरोल किए बच्चे थैलेसीमिया वाले, हमने बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे।
मैं उन साइड इफेक्ट्स की भी बात करूंगा। जब हमने देखा इतना सारा साइड इफेक्ट है, फिर हमारी एम्स में कमेटी बैठी, फिर हमें लगा कि नहीं, हमें देना तो चाहिए क्योंकि ये दवाई इफेक्टिव है, पर 4 मिलीग्राम की डोज ज्यादा है, हम इसकी डोज कम करते हैं। हमने इस डोज को 4 मिलीग्राम की जगह 1 मिलीग्राम कर दिया। तो बाकी पेशेंट्स को हमने 1 मिलीग्राम की डोज दी, और 1 मिलीग्राम की डोज देने के बाद हमें कुछ बहुत ज्यादा उसके बाद साइड इफेक्ट्स नहीं झेलने पड़े। यदि मैं इस दवाई की सेफ्टी की बात करूं, कि पहला हमारे पास जो सिग्नल आया वो सेफ्टी सिग्नल था। 9 में से 4 बच्चों को टेटनी हो गया। जोलिड्रोनिक एसिड जो है ये कैल्शियम कम करता है, इसका साइड इफेक्ट होता है। इसने इतना कम किया कि बच्चों को टेटनी हुआ। हाथ, टेटनी का मतलब मेरे हाथ पैर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम। कॉज ऑफ लो कैल्शियम वाज थैलेसीमिया एंड अदर कॉजेस प्लस दिस मेडिसिन दैट वी गेव। और ये जो है काफी देर तक परसिस्ट किया। हाइपोकैल्सीमिया हमने पकड़ा, हमने कैल्शियम के इंजेक्शन लगाए, तो भी ये पेशेंट, पहला जो पेशेंट था वो 21 साल की लड़की थी, जिनको 12 घंटे बाद शुरू हुआ और इसको 6 दिन लग गए ठीक होने के बाद। इनके में हमने जब इवैल्यूएशन किया तो हमने पाया कि इनका पैराथायराइड हार्मोन की भी कमी थी, एंड दैट एक्सेसरबेटेड दिस टेटनी। दूसरे 22 साल की थी, जिनको 24 घंटे के बाद शुरू हुआ और कैल्शियम देने के बाद भी वो 3 दिन तक चलता रहा। एक 19 साल के थे, जिनको अगेन एक हाथ में आया खाली 24 घंटे के बाद, इनका 2 दिन तक चलता रहा। चौथे जो पेशेंट थे, इनका सिम्टम्स तो नहीं आए, बट इनका कैल्शियम 4 तक चला गया था। तो जब 9 में से 4 बच्चों को इस तरीके की दिक्कत आ जाए, तो फिर एक सिग्नल आया कि ये चीज ठीक नहीं हो रही, जिसके बाद एम्स की कमेटी बैठी और हमने डोज को 4 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम कर दिया। 1 मिलीग्राम करने के बाद जो नतीजे हमारे थे पेन को लेकर, पेन हमें वैसे ही 40 में से केवल 7 बच्चों ने बताया था। पहली डोज के बाद ही 5 में से 6 बच्चों ने कहा हमारा जो पेन स्कोर है, जो विजुअल एनालॉग है, वो 0 हो गया, अब नहीं है। और एक लड़की में वो पेन सेकंड डोज के बाद चला गया। जब ये स्टडी चली, उसके बाद किसी पेशेंट में कोई फ्रैक्चर एपिसोड हमने अगले 1.5 साल में नहीं देखा। एक बच्चा जिसकी बोन मिनरल डेंसिटी कम थी, बट वो ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहा किसी कारण से, उनका ये स्टडी चलते चलते फेमोरल शैफ्ट में फ्रैक्चर आगे जाके आ गया था। यदि हम देखें कि जब हमने ये दवाई दे दी तो मेरी बोन मिनरल डेंसिटी कितनी बढ़ गई, तो हमने ये पाया कि अगर हम लंबर स्कोर में देखें तो पहले 0.79 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी, वो बढ़ के 0.84 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। तो जो मेरा इंक्रीज आया वो 0.04 ग्राम आ गया। मेरी जो हड्डी है पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है, ज्यादा डेंस हो गई है। सिमिलरली हम जो हिप एरिया में देखें या जो फोर आर्म एरिया में देखें, हमारा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स बोन मिनरल डेंसिटी में ट्रीटमेंट के बाद आ रहा था। यदि इसी चीज को मैं 1 साल के बाद देखूं, जब मैंने जोलिड्रोनिक एसिड 4 डोज दे दी, तो मेरा लंबर में करीब 5.5% की वृद्धि हो गई बोन स्ट्रेंथ की, हिप में करीब 2.25%, फोर आर्म में लगभग 2%, और ओवरऑल अगर हम स्कोर देखें तो करीब 3.25% की मेरी बोन स्ट्रेंथ 1 साल के बाद इस दवाई। पेन मेरा सारा खत्म हो गया, मेरी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ गई, और हम ऑफकोर्स सोचते हैं कि बोन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेरा फ्रैक्चर इंसिडेंस कम होगा। क्योंकि हमें स्टैटिस्टिक्स का शायद इतना ज्ञान ना हो, जो हमारा ये स्कोर है -7 से शुरू हो रहा है। कहने का मतलब जोलिड्रोनिक एसिड देने के बाद भी कुछ बच्चों की बोन मिनरल डेंसिटी पहले से कम हुई, बट अधिकतर बच्चों की बढ़ी है। तो यदि मैं स्टॉक को अभी समाप्त करना चाहूँ, तो इसका सार यह है कि लो बोन मिनरल डेंसिटी या हड्डियों का कमजोर होना थैलेसीमिया में बहुत कॉमन है। हमारे में 20 साल से ऊपर के बच्चों में 100% में था, और 20 साल से नीचे के बच्चों में 75% में था। जो कॉमन फैक्टर्स हैं, अगेन प्रॉपर आयरन मिले, प्रॉपर आयरन किलेशन मिले, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो रही हो, यदि हमें हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है हम उसको ट्रीट करें, एडिक्वेट ट्रांसमिशन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं, और ये सब करने के बाद भी हम देखते हैं कि सब हमने अच्छे से किया, तब भी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रही है, तब हमें जोलिड्रोनिक एसिड एज अ बिस्फोस्फोनेट वंस इन 3 मंथ्स हमारी स्टडी के हिसाब से 1 मिलीग्राम की डोज में देना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, Dr. Rahul Nathani. Dr. Rajiv Bansal is there? Yes. Dr. Bansal? Dr. Rajiv, I think he's not there. So our next session is on, yes, he's there. Hi, sir. Okay, now we are to the last section of this talk, that is a panel discussion.
Good afternoon once again to everyone. Dr. Bansal, please unmute yourself. Yes, sir. So now we are to the last session, that is panel discussion, which I'm going to start right now. Okay. So all the chairpersons and speakers will take part, and even others like Dr. Khanna is there, and others are there. They can also join. So first of all, my special thanks to Dr. Shruti and Dr. Rahul Nathani for you can say elaborating on their topics. मतलब हमारे बच्चों में जो सबसे ज्यादा समस्या जैसे आती है आयरन चिलेशन की आती है, उसके ऊपर जो डॉक्टर श्रुति ने बहुत ही सरल भाषा में, मैं सही कहूँ तो पेशेंट की भाषा में जैसे समझाया, तो शायद पेशेंट को एक अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि हमें आयरन चिलेशन की क्या आवश्यकता है और उसको कैसे लाना चाहिए, हमें कौन सी दवाई चूज करनी है और उस दवाई के क्या डोज लेनी है, कब एडजस्ट करनी है, ये सब डॉक्टर श्रुति ने हमें ध्यान से बताया। इसके बाद डॉक्टर राहुल नथानी ने बोन स्ट्रेंथ के ऊपर, बोन डिजीज के ऊपर जो थैलेसीमिया देखी जाती है उसके बारे में हमें बताया। प्लीज जितने ऑडियंस है प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें, जो क्वेश्चंस पहले पूछा जाएगा फिर ऑडियंस अपने क्वेश्चन उसमें चैट बॉक्स में डाल दें, उसमें से देख के फिर हम करेंगे और टाइम बचेगा तब आपको अनम्यूट करने के लिए कहा जाएगा। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर नथानी, डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि जो डेक्सा है वो इस एज से स्टार्ट करना चाहिए। आपने ये तो बताया कि डेक्सा स्कैन करते हैं बोन मिनरल डेंसिटी देखने के लिए, तो किस एज में स्टार्ट करना चाहिए और कौन से पार्ट का होना है, क्योंकि कई हम जाते हैं जब वहां पर एक सेंटर के अंदर डायग्नोसिस सेंटर में, वो अक्सर पूछते हैं कि कौन से पार्ट करना है, हिप है, फीमर है, होल बॉडी है, क्या है, तो ये दो बातों में थोड़ा सा प्रकाश करें। सो यदि हम थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन, हम डेक्सा करना क्यों चाह रहे हैं? डेक्सा हम करना चाह रहे हैं देखने के लिए कि क्या मेरी बोन की स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं। सो जनरली एक बार बच्चे ने प्यूबर्टी अटेन कर ली या प्यूबर्टी की एज आ गई थी और किसी कारण से हम नहीं कर पाए हैं, वो समय के बाद हम डेक्सा स्कैन कर सकते हैं। आइडियली डेक्सा स्कैन इज टू बी डन आफ्टर एज ऑफ 20 ईयर्स। वाई 20 ईयर्स? मैंने डेक्सा स्कैन करके जो मेरे पास बोन मिनरल का डेटा आया, मेरे को उस डेटा को किसी से कंपेयर करना है। हमारी अधिकतर प्रॉब्लम ये है कि जो 20 साल से जो कम उम्र के बच्चों का, 20 साल से ऊपर का तो एडल्ट में हमारे पास डेटा नॉर्मल पॉपुलेशन का अवेलेबल होता है, हम उसमें से टी स्कोर, जेड स्कोर निकाल सकते हैं। 20 साल से नीचे की जो उम्र के बच्चे हैं उसमें डेटा हमारे पास केवल लंबर बोन का अवेलेबल है, तो वहां पे हम जेड स्कोर्स कर सकते हैं। सो 20 साल से नीचे पे हम कर तो लेते हैं डीएक्सए स्कैन, बट टू ट्रूली से इट इज लो बोन मिनरल डेंसिटी, वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब तक कि स्कोर हमारा बहुत खराब ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे अधिकतर बच्चों का स्कोर काफी खराब निकलता है, और यही रीजन है कि जो टर्म ऑस्टियोपोरोसिस है वो 20 साल के बड़े बच्चों के लिए बोली जाती है। 20 साल से जो नीचे के बच्चों के लिए, उनके लिए लो बोन मिनरल डेंसिटी टर्म यूज किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं किया जाता है। और उसका रीजन ये क्योंकि 20 साल की एज तक बच्चे ने अभी तो पीक बोन मास अटेन ही नहीं किया, तो हम कैसे कहते कि कम है, क्योंकि क्या पता अभी नहीं किया 2 साल बाद अटेन कर ले। So because of lack of data about the normal controls, DXA scan in children less than 20 years of age only lumbar area, puberty till 20 years of age. एक बार हमने adulthood attain कर लिया और हमारे पास data available है to compare, then the 3 sites which are recommended are lumbar area, forearm and hip. इन 3 areas में हमें करना होता है और उसमें फिर जो भी स्कोर निकले फिर उसके हिसाब से हमें इंटरवीन करना है। एक और चीज, हम लोग जनरली आम भाषा में डेक्सा स्कैन बोलते हैं, टेक्निकली द शॉर्ट फॉर्म इज डीएक्सए स्कैन। थैंक यू। वैसे मैं यह आपके इसी वक्तव्य के ऊपर मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि हमने देखा है कई सेंटर्स में जो छोटी एज के बच्चे 12, 13, 14, 15 साल वालों की डेक्सा स्कैन लिखा जाता है, तो वो मैं एक चाहता हूँ कि जो हमारे कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ लिखा जाता है, तो दे शुड बी अवेयर कि डेक्सा स्कैन की जरूरत 20 साल या 18 साल के बाद होनी चाहिए, जब प्यूबर्टी हो जाए, उससे पहले नहीं। एक चीज और बड़ा भ्रम था, वो आपने अपने टॉक में क्लियर कर दिया, वो ये था कि जेड स्कोर कब इंटरप्रेट करना चाहिए और टी स्कोर कब। वो आपने क्लैरिफाई किया कि जो 20 साल से नीचे हैं उसके लिए आपको जेड स्कोर करना चाहिए और 20 साल से ऊपर के लिए टी स्कोर को देखना चाहिए।
मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, जो टी स्कोर है, टी स्कोर का रेफरेंस पॉइंट होता है यंग हेल्दी लेडी ऑफ 30 इयर्स ओल्ड, उनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी। सो जो हमारी ऑस्टियोपीनिया पोरोसिस की जो डेफिनेशंस है, दैट इज इन रेफरेंस टू अ 30 ईयर ओल्ड फीमेल। एडल्ट्स में भी जेड स्कोर यूज कर सकते हैं, बट एडल्ट में जो जेड स्कोर है वो एज मैच है। सो 55 ईयर ओल्ड मेल bone mineral density is compared with a 55-year-old male normative population. So Z score is exact age to age or gender to gender, while T score is to 30-year-old female. For all practical purposes, in adults, T score is usually sufficient, so we need not worry about Z score. राहुल जी, कुछ नॉमोग्राम्स इन्होंने बनाए जो पूना में है ना, डॉक्टर साहब इज एंडोक्राइन वामन खादिलकरन फॉर यंगर एज ग्रुप्स. Do you have any idea, and are they? I'm not sure if I've heard the question properly, but if the जी जो डॉक्टर वामन खानदिलकर हैं, he is a pediatric endocrinologist. So he has generated some mammograms for Indian children for younger age group for bone mineral density. So do you have any idea if they've been incorporated? Because this is all in the machine. The machine scores we are talking about. So I am not, so for lumbar, yes, the lumbar data is incorporated in the machines already and we can generate Z scores. I'm not sure if such a data exists for hip and forearm. डॉक्टर नथानी, एक क्वेश्चन और है. हमने अक्सर देखा है कि पेशेंट्स का बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन मेंटेन है, उसका आयरन चिलेशन भी अच्छा हो रहा है, प्यूबर्टी भी ठीक है, तब भी उसमें ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया देखा जाता है. उसके क्या रीजन हो सकते हैं? क्योंकि अक्सर तुम कहते हैं कि चिलेशन अच्छा करो, एनीमिया नहीं होना चाहिए आपको, ये सब बोन हेल्थ ठीक रहेगी, तो उसमें क्या रीजन हो सकते हैं? सो यदि हम नॉर्मल करेंगे, भाई हमें थैलेसीमिया तो है, पर जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो अपरेंटली नॉर्मल हेल्दी लाइफ चल रही है, बट हम आगे जाके देखते हैं बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रही है. सो बोन मिनरल स्ट्रेंथ को कम करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं. कैल्शियम, विटामिन डी, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, iron overload, the iron chelating agents, the bone marrow expansion and all. But despite all these also, there are the genetic polymorphisms also sitting, like the collagen gene polymorphism, the vitamin D receptor polymorphism. So there are several other. So इसीलिए देखा गया है कि ये सब होने के बाद भी bone mineral density कम है, and that is why bisphosphonates are given. Otherwise, the treatment would have been, adequate transfusion, adequate chelation, hormone supplementation, and that should have maintained. But the bisphosphonates are used for this very reason, that despite doing all this, we still lose bone mineral density. Dr. Arora, I'd like to add, Rahul, जी जितने थैलेसीमिक्स बच्चे हैं, पेरेंट्स उनको एक्सरसाइज नहीं करने देते. He is sick. I think that is more relevant. The physical activity makes the bone stronger, and the other is they don't give that much calcium to these children. For example, with every blood, when you give a transfusion, it has anticoagulants which chelates calcium from the body. So therefore, one finds the serum calcium may be low, but the calcium is being removed from the bones, and that acts another additional factor. So in बच्चों को एक तो calcium regularly, और parents should encourage to do lot of exercises. कि थैलेसेमिक बच्चा है, ये कमजोर है, उसको भागना दौड़ना नहीं देंगे, खेलने नहीं देंगे. So which exercise plays a major role to build the bones. Yes, sir. Genetic factors, regulation, those you have emphasized. I think what is more important is these points also which should be considered, और बच्चों को ध्यान रखना चाहिए. Parents जो है वो encourage करें बच्चों को to do the normal exercises, play, take it. I mean, बच्चों को नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए, उनको नॉर्मल एक्टिविटीज करने एनकरेज करनी चाहिए थैलेसेमिक्स बच्चों को. यस सर, आपने सही बताया, एक्सरसाइज और कैल्शियम का बहुत अच्छा रोल है. Just to add a small thing, sir, to what Dr. Chaudhary has said, is low weight training also, low weight, not very heavy weight training, but low weight training will also add to the. थैंक यू डॉक्टर बंसल. डॉक्टर श्रुति, क्या आयरन चिलेटर का कोई रोल है इसके बोन डेंसिटी के ऊपर या बोन हेल्थ के ऊपर? या डेस्ट्रॉल है, कैल्फर है या डीपेरिप्रोन है?
इनसे क्या बोन इश्यूज हो सकते हैं? सर जितने भी हमारे बच्चे हैं ज़्यादातर आजकल ओरल किलेटर पे हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास डेटा है बोन हेल्थ का विद आयन किलेटर वो अवेलेबल है डेस्फेरिऑक्सामिन के साथ में। सो जैसे कि मैंने अपने टॉक में भी कहा था कि जब हमारा फेरेटिन कम होता है उस टाइम पे डेस्फेरिऑक्सामिन के टॉक्सिटीज़ बढ़ सकते हैं और उसमें से एक टॉक्सिटी है बोन हेल्थ पे कि हमारा जो ये डेस्फेरा है दिस कैन कॉज डेपोजिशन जो हमारे वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं उसके अंदर, जो स्पाइन के वर्टिब्रास हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से फ्लैट हो जाते हैं वर्टिब्रास एंड दैट कैन लीड टू शॉर्ट स्टेचर ऑल्सो। सो द मैसेज एट द एंड वुड बी कि अगर आप डेस्फेरा ले रहे हैं तो it can have adverse effects, especially जब ferritin कम है. So be careful and consult your doctor if regularly, especially अगर ferritin कम है तो उल्टा ज़्यादा regularly consult करने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि टॉक्सिटीज़ बढ़ सकते हैं इंक्लूडिंग बोन हेल्थ। डेस्पेरॉल के साथ ये चीज़ें ज़्यादा हैं सर, जहाँ तक कैल्फर और डेफ्रासिरॉक्स है उनका बोन हेल्थ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है। I have seen 2 cases, both one each with the Calpar and Defrosirox. A child around 18-19 year old, उसको सिर्फ डेफ्रोसिरॉक्स ले रहा था, कभी कैल्फर लिया ही नहीं, और उसके जो है जो फोर आर्म है इट वाज जस्ट गोइंग, मतलब इस तरह से मुड़ गई थी एंड फिर उसको बाद में वहाँ कलावती में करके ट्रीटमेंट लिया। ऐसे कैल्फर में कुछ पेशेंट्स में देखा गया है एंड कैल्फर में जॉइंट पेन तो वेरी कॉमन। Joint pains are known, but as such, it doesn't really cause short stature. But जो आप बता रहे हैं, that is something. I think it is a learning exercise for people like me कि आपका experience, and I think we'll keep our eyes open to look for these side effects. I think these जो डॉक्टर अरोड़ा ने कहा है, side effects on the growing end of the bones, even following calcium as well as following Calfer as well as defroxirox have been reported and they are very well observed. अब जितने बच्चे जितने ये लॉन्ग टाइम पे लेते हैं, हमने सब ने देखे हैं ऐसे बच्चे कई, और अगर हम जब स्पेशली उनके एक्सरे करते हैं और ज्यादातर रिस्ट जॉइंट के ऊपर रेडियस और अल्ना पे इफेक्ट पड़ता है और सिमिलरली नी जॉइंट्स पे भी देखा गया है। और क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि काफी बच्चों के फेरेटिन लेवल्स आर बहुत हाई हैं और कैल्शियम ये कम लेते हैं, और जब ये एडिक्वेट किलेशन करते हैं तो ये साइड इफेक्ट्स इन बच्चों में लॉन्ग टर्म पे पाए गए, देखे गए हैं। देयर आर couple of papers which have published on this bone deformities following Calfer. Even Rahul has seen, when you were there in the AIMS, we saw a couple patients which are there, And I think the crux is adequate chelation from early age onset and adequate calcium intake. और इन बच्चों को I think we should encourage parents को to give more milk, which is a natural calcium source. और मैं एक बिंदु यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि हम जब भी बच्चों थैलेसीमिया में ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं, बट अधिकतर हमारा जो लिटरेचर है वो एडल्ट ऑस्टियोपोरोसिस वाला है। हम अधिकतर लंबर बोन की बात करते हैं, बट हमने भी ये जो स्टडी करी जो मैंने आज दिखाई है, द वीकेस्ट बोन्स वर द forearm bones. So even though we are doing it for lumbar, but the weakest bone, the worst scores were for the forearm bones. So वहाँ पे fractures और ये सब incidences ज़्यादा है, so we just need to be careful, especially in less than 20 years old where we are probably doing only the lumbar thing. Do you have any theory why does the forearm bones are much weaker? We don't have any reason for that. It has been seen in other studies, but we do not have any specific reason why it should be there. I mean, why this particular bone should be affected more. Lumbar is highlighted more because it is carrying the body's weight. So in the fractures and even I have seen it. This bone density is low on forearm. Just compare it. And then we see, I mean, certainly we see more fractures in forearm. There is no doubt about it, and which corroborates the finding. But even scoring is also low. That is there. अच्छा डॉक्टर नथानी, आप अभी बात कर रहे थे विटामिन डी के लिए, तो उसके लिए एक तो वन इज दिस कोल्ड कैल्सिफॉल, अदर इज कैल्सिडॉल, जिसको हम रोकैल्ट्रॉल नाम से जानते हैं। एक तो ये जानना चाहिए कि दोनों में क्या फर्क है, और दोनों में मतलब क्या दोनों एक साथ दे सकते हैं, नहीं दे सकते, या कब क्या कौन सा देना चाहिए। और इसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन अटैच कर दूं ऑलरेडी पहले आपके लिए, कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी कब हो सकती है, कब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विटामिन डी टॉक्सिक हो सकता है। तो ये दोनों चीजें आप अगर हम थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन की गाइडलाइन के हिसाब से जाएं तो बड़ी क्लियर है, 500 मिलीग्राम कैल्शियम ट्वाइस अ डे
0.25 micrograms of alpha calcium. Vitamin D toxicity का issue बड़ा important है. We do see toxicity. I have not seen in thalassemia patient. Adults पे हम लोग देखते हैं. By and large, in an adult, if you are giving 60,000 units every 15 days, you don't need to check levels, you don't need to do anything, you are not going to see vitamin D toxicity. I'm talking about adults 18 years and above. So it is highly unlikely that we are going to see such a toxicity even in thalassemia. By and large, majority of Indians are low in vitamin. I will be very honest, last 15 years, I have never seen a normal vitamin D level reports. I have only seen normal levels when somebody was on supplement. But yes, toxicity is seen. And I'll tell you the scenarios, not in thalassemia, where we see vitamin D toxicity. Mostly coming from, unfortunately, the orthopedic background. The patient had consulted an orthopedic for pain and all. They have given the 6 lakhs unit of vitamin D. And many times it has been given daily or alternate days. That's where the toxicity is coming. 60,000 units every 15 days is a safe, no level checking required, nothing required, and we do not see tox. So it is when the vitamin D is repeated very frequently, that's where the toxicity comes. If we are sticking to, a once a week schedule, it does not happen. Again, so I have slight difference of most of the societies would go for the daily vitamin D because biologically that is superior to, once a week. But then in my practice, I've seen once a week actually, maintains the compliance. सर उसमें कोल कैल्सिफ्रॉल एंड कैल्सिट्रॉल में क्या फर्क है? जी. So I'm not the right person to answer this question. Maybe someone else could take it. Anybody else can answer this question? और डॉक्टर खन्ना आप कुछ कहना चाहेंगे? See, Rokeltrol or calcitrol, जिसकी आप बात कर रहे हैं, Dr. Arora, that is the final product, metabolic product of vitamin D, and most pure form of vitamin D. If you give it for a long time, though it's very potent, very effective in raising the calcium level, for if you want immediate calcium rise, then you give it, or in hypoparathyroidism, we give it. But the problem is when you give it for a long time, it can have side effects. When we give it, we should monitor 24 hours urinary calcium level, because it can cause in long term, some people keep taking it for years, 1 or 2 capsules of Rokeltrol, and then it causes nephrocalcinosis or renal stones. We have seen in some children happening like that. And cholecalciferol is the vitamin D that we normally use. So that is the basic form of vitamin D, which gets metabolized in the liver to 1-hydroxy cholecalciferol, and in the kidney to 1,25-dihydroxycalciferol, which is Rokeltrol. So you already, जब आप Rokeltrol देते हैं, तो आप already वो product जो है metabolize होकर जो final product आता है वो देते हैं. So that is why it is more potent, and it doesn't require that liver and kidney process in that. It has a one side effect, that is it may cause hypocalcemia as well. Rokeltrol for a longer use. Rokeltrol increases the calcium level. Basically, जब हमारे पास बच्चे low calcium से आते हैं, we give them initial period में Rokeltrol to immediately increase the calcium level. But we should not continue unless definitely indicated it for very long time. As Dr. Nathani has said that you can give this thing, vitamin D, cholecalciferol, vitamin D3 for every week or 15 days. But remember, there are many people who keep taking every week for years. वो बंद ही नहीं करते. And I have seen many of my orthopedic friends who are very fond of giving vitamin D. They keep giving every week for 1 year, 2 years like that. And ultimately those children come to us with the renal stones. So we have seen side effects of vitamin D excess also. So we should remember that vitamin D, okay, the toxicity, we don't see that often, but we should not continue it for a very, very long time.
once a month or once in 2 months is okay, because then you give the physiological requirement of that. Because our requirement is maximum 1000 unit a day. If you calculate in 1 month, it will be 30,000. If you give 60,000 sachet every 1 or 2 months, then you are giving the maintenance. 2000 per day. Yes, sir. Dr. Bansal, see, उसकी bone pain की बात कर रहे हैं. But we have seen usually patient अक्सर complaint करता है कि blood transfusion से पहले उसको bone pain या backache ज्यादा देखी जाती है. तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? मैंने बहुत ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है वैसे. सच्चाई ये है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे को एग्जैक्ट रीजन कहीं से पता चल जाए, अपने पेशेंट्स में भी और लिटरेचर में भी. बट ट्रूथ इज कि कहीं का कुछ नहीं लिखा है इस बारे में. एंड आई वुड वेलकम इफ खन्ना सर, श्रुति और पीपी चौधरी सर कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट टू डू. Probably it's more common in all those people, all those children जिनका हीमोग्लोबिन लो रहता है और poorly chelated रहते हैं. And to the, I think the best answer will be to keep hemoglobin up for a long period of time and keep it up only. Get yourself properly chelated and maybe then give it a trial of hydroxyurea. If that doesn't, nothing works, that's one thing. And secondly, हो सकता है क्योंकि क्या होता है कि इनके अंदर थैलेसेमिक्स के अंदर जो बोन मैरो एक्सपेंशन है up to 30 times the normal हो सकता है. And that could be one reason कि इनके अंदर बोन पेन ज्यादा कॉमनली होते हैं. इवन ट्रांसफ्यूजन से पहले, ट्रांसफ्यूजन के बाद, ट्रांसफ्यूजन के दौरान, या फिर और तो या माइक्रो फ्रैक्चर्स हो. आई विश खन्ना सर. डॉक्टर खन्ना कुछ कहना चाह रहे हैं. डॉक्टर खन्ना. जी डॉक्टर बंसल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये कुछ बच्चों में वी आल्सो वेरी ऑफन सी कि जो लोग इवन if they are maintaining 9 grams pre-transfusion hemoglobin, या ज्यादातर तो वही होते हैं जो लो hemoglobin जैसे आपने बताया. In some children, even at 9 grams pre-transfusion hemoglobin, the suppression of bone marrow is not adequate that much that we want. तो क्या होता है, इन बच्चों में थोड़ा सा bone marrow expansion at the vertebral level हो जाता है, which causes before the that transfusion time bone pain, back pain. So if you raise their pre-transfusion hemoglobin by 1 gram or so, it disappears after a few months. So the answer to this question is, you increase, if he is maintaining 9 grams, you increase it to 10 grams, and this will the bone pain, back pain will disappear. For some time to cover up, hydroxyurea may be given up. Hydroxyurea again will suppress the that expansion of bone marrow. In fact, sir, absolutely right. अपन 4-5 जने, श्रुति भी है, यही सब लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं. We can give it a subject of trial. कि सोच सकते हैं कि भाई can we work on this and on in a cooperative manner to. Rajiv, मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है, the moment we increase the baseline hemoglobin, pre-transfusion hemoglobin, it most of the time it disappears. Rajiv, I think more is, what they take for any guidelines, they are in general, not for any individual. Yeah. And what you said is erythropoiesis, bone marrow expansion can occur 20 to 30 times in the thalassaemics. With a transfusion, you are suppressing it, but that doesn't mean कि हर बच्चे का 9 या 10 पे कम हो जाता है. Yeah, that's true. Some children require even 11 gram, उनका पेन कम होता है. So this is one aspect. B, secondly, हमने देखा है कि किस बच्चे को अगर जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन होता है, अगर आप फास्ट ब्लड दे देते हैं, 1 घंटे में दे दिया, आफ्टर ऑल जो उसके अंदर इस एंटी प्रिजर्वेटिव्स हैं, they remove the calcium and calcium level falls fastly and they complain of a pain. तो I think the other objective is, अगर आपको करना है, ऐसे बच्चों को ब्लड स्लो दो, rather than 2 hours, take it 3-4 hours, their pain will not occur. जैसे प्री ट्रांसफ्यूजन की भी, एक्चुअली ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन तो समझ में आता है, प्री ट्रांसफ्यूजन की भी बड़ी समस्या है. Because of the low hemoglobin, and you have to maintain the hemoglobin at a higher level. Rather than 10, I'll say keep it 11 in such children, that the pain will disappear. So the clear message is, I think Arora Sahab has put in a pertinent, very important पूरे time.
You see increase the the problem? free transfusion hemoglobin. That's Pre-transient hemoglobin is, these are guidelines, whether TEF or any body guidelines or IAP guidelines, these are guidelines. They do सर not इसी make, को सर it इसी doesn't- को आगे ले जाता हूँ एक add this to you only, इसी चीज को आगे फॉरवर्ड करते हुए, बट वी हैव सीन कि आज भी बहुत सारे सेंटर्स में जो हम लोग यहाँ बैठे हैं वो तो खैर मेंटेन सही कर रहे हैं, आज भी कई सेंटर्स में 6, 7, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन रखा जाता है। तो उसके आप कैसे उनको, हमारे कुछ पेशेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? वो कहते हैं कि अगर हम हीमोग्लोबिन ज्यादा रखेंगे तो आयरन बढ़ जाएगा। तो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू देम? I think एक तो नंबर एक है कि हमें इन पेरेंट्स फैमिलीज को चाहिए वो कहें कि हमारी वेरियस सोसाइटीज कैन, हमारा नाम भी ले सकते हैं कि ब्लड लेवल प्री ट्रांसफ्यूजन 10 रखना है। अगर आप ये 8 रखते हैं, इतनी कई प्रॉब्लम्स है। एक बोन पेज जो अभी इतनी लंबी हम डिस्कशन कर रहे थे। दूसरा, अगर हीमोग्लोबिन लो होता है तो इनके लिवर स्प्लीन बढ़ जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, फेशियल डिफॉर्मिटीज लो हीमोग्लोबिन से होते हैं, ऑल कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेनेंस इनमें होते हैं। ना कि बल्कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं इनकी प्यूबर्टी भी डिले होती है। हीमोग्लोबिन शुड बी अबव 10, अराउंड 10 प्री ट्रांसफ्यूजन लेवल। एक और दूसरा जो है कि इन बच्चों में जब हीमोग्लोबिन कम होता है, देयर इज इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस, with the result iron absorption from the gut can go up. And अभी हमने डॉक्टर ओड़ा आपके साथ जो 120 MRI करे, 90% ऑफ बच्चों के अंदर लिवर में आयरन ज्यादा था, whereas cardiac iron levels were normal in 90%. तो एक वन ऑफ रीजन तो मेरे माइंड में ये है कि इनकी हीमोग्लोबिन कम होने से there is increased iron absorption from the gut, और ये आयरन लिवर के अंदर जाता है थैलेसीमिया मेजर बच्चों में, और जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो द क्रक्स इज कि ये जो लेट अस से डॉक्टर्स और सम पीपल आर अंडर रॉन्ग व्यूज, या उनका इंप्रेशन गलत है कि अगर हम ब्लड कम देंगे तो आयरन ओवरलोड कम होएगा। टू माय माइंड द रिक्वायरमेंट ट्रांसफ्यूजन की वही रहती है, चाहे आप 8 ग्राम पे रखो या 10 पे रखो या 11 पे। इनिशियली आपको 2-3 यूनिट ब्लड के ज्यादा देने पड़ते हैं और टू ब्रिंग द लेवल अबव 10 ग्राम, और बाद में रिक्वायरमेंट रिमेन्स द सेम। और अगर हम ब्लड लेवल कम रखते हैं, आयरन अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट इज मोर, और वो आयरन जो है लिवर के अंदर जाके डिपॉजिट होता है, एंड विच क्रिएट्स एडिशनल प्रॉब्लम्स। So I think it's clear we have to keep the hemoglobin level about 10 ग्राम। डॉक्टर Yeah. शुक्ली, आपने 2-3 आयरन चैलेंजर की बात करी, एक आपने बता किया फिल्म कोटेड के लिए। तो हालांकि आपने बोला फिल्म कोटेड, वो क्या उससे बेटर है डिसॉल्व करने पहले जो डिसॉल्व करते हैं, फिल्म कोटेड बेटर है, या दोनों में क्या फर्क है? थोड़ा सा, क्योंकि आजकल बहुत से पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जी साहब वो नई दवाई आई है डेसिलोक्स, वो वाली दे दीजिए। तो वो आप थोड़ा सा उसके बारे में क्लैरिटी कीजिए। राइट। सो सर, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी पेरेंट्स आते हैं और पूछते हैं क्या नई दवाई है। सो नहीं, दवाई सेम है ना, सिर्फ उनकी पैकिंग में कहूँगी फ़र्क है, जो उनका कवरिंग है, जो उनको पैक करने का तरीका है वो डिफरेंट है। दवाई जो उसके अंदर सॉल्ट है वो सेम है। सो अगर दवाई सेम है तो इफ़ेक्ट भी सेम होगा। फिल्म कोटेड टैबलेट का मतलब क्या है कि उस टैबलेट के ऊपर हमने एक पैकिंग करी है जिससे हमें उसको घोलने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको एज अ टैबलेट ले सकते हैं, वो बॉडी में अपने आप जाके विद वाटर डिजॉल्व हो जाएगी। बेनिफिट्स क्या है फिल्म कोटेड टैबलेट के एक नॉर्मल टैबलेट के ऊपर? वो ये है कि आपको उसको डिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग बहुत सारा पानी, छोटे बच्चे स्पेशली इतना सारा पानी नहीं पी पाते या बहुत टाइम लगाते हैं। आप चलते फिरते कहीं पे भी आप घर पे लेना भूल गए, आप बस में हैं, फटाफट एक टैबलेट ली, ऊपर से पानी ले लिया। तो कंप्लायंस जो है, जो दवाई लेने की आसानी है, वो फिल्म कोटेड टैबलेट से बेटर है। दूसरा जो बहुत बड़ा फायदा है फिल्म कोटेड टैबलेट का, वो उन बच्चों के लिए है जिनको बार बार पेट की तकलीफ रहती है एक नॉर्मल डेफ्रासिरॉक्स टैबलेट के साथ में। कई बच्चे नोजिया कंप्लेन करते हैं, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है ना, या ब्लोटिंग सी, मतलब भारीपन महसूस करते हैं। वो सारी चीजें कंपेयर टू नॉर्मल डेफ्रासिरॉक्स एक फिल्म कोटेड टैबलेट में कम है। पर अगर आप
एक डेफ्रासिरॉक्स की टैबलेट ले रहे हैं, आपको उसको लेने में कोई तकलीफ नहीं है और आपको कोई पेट में की कोई तकलीफ नहीं है, आपको उसको मतलब दवाई की वजह से पेट में कोई तकलीफ नहीं है, देन वी वुड से यू कैन कंटिन्यू व्हाट यू आर टेकिंग। अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल हैम्पर हो रहा है, आपको दवाई मिस हो जाती है बार बार ये घोलने के चक्कर में, या फिर आपको पेट की तकलीफ हो रही है, then that is a patient, that is a child who needs to be shifted to a film coated tablet. You can say this is more convenient to take. आपका More भी वही है। convenient to take, yes. डॉक्टर खुंगर, डॉक्टर श्रुति ने बताया बार बार कि हमें आयरन को मॉनिटर करने के लिए सीरम फेरेटिन टेस्ट करना चाहिए। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले फेरेटिन चेक कराना चाहिए, वो ठीक आएगा, या अगर हम बाद में कराते हैं तो वैल्यूज बहुत ज्यादा आएंगी, उससे क्या फर्क है? अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले दिन करें जैसे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं, या उससे बाद कराएं या पहले कराएं, क्या उनकी वैल्यूज में कुछ फर्क पड़ सकता है? यस ऐसे है कि अगर हम चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले करें सीरम फेरेटिन, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद सैंपल दें, उसमें कोई फेरेटिन लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लैब में ब्लड सैंपल देना चाहते हो फेरेटिन के लिए, ट्रांसफ्यूजन से पहले भी दे सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन के बाद भी दे सकते हैं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद भी दे सकते हैं, उसमें लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्टडी हुई थी, जैसे उन्होंने उसमें ट्रांसफ्यूजन से पहले फेरेटिन के लेवल देखे, फिर ट्रांसफ्यूजन के 2 दिन बाद देखे, फिर 4 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, फिर 8 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद देखे, तो फेरेटिन के लेवल सेम रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट्स गुड। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे फेरेटिन लेवल पे फर्क पड़ सकता है? फेरेटिन लेवल, फेरेटिन ऐसे है कि इसको हम बोलते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट। फेरेटिन इज एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट। तो कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो फेरेटिन बढ़ जाएगा। जैसे कोविड में ये हुआ, सबने फेरेटिन लेवल करवाए और फेरेटिन लेवल काफी बढ़ गए, क्योंकि कोविड में हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ, एक्सेसिव अनवांटेड हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ। इन्फ्लेमेशन पोस्ट कोविड, जैसे कोविड वायरस से अंदर जाता है, जब मर जाता है तो उसके बाद इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है कि फेरेटिन लेवल बहुत बढ़ जाते हैं। जैसी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, फेरेटिन लेवल बढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, वो है। दैट मींस इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में कोई सूजन हो तो फेरेटिन नहीं जांच करानी चाहिए। नहीं करानी चाहिए, हाँ। पहले उसको कंट्रोल करके उसके बाद फेरेटिन जांच करानी चाहिए। डॉक्टर नथानी, आर यू देयर? राहुल, डॉक्टर राहुल नथानी, चलो अभी नहीं है। I'm here on. He is there. Okay. डॉक्टर साहब, पीटीएच की आप बात कर रहे थे, थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन का बोन हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है? और अगर पीटीएच डिरेंज हो, मतलब लो है, हाई है, या फिर उसका कैसे उसको नॉर्मल करना है, वो उसके बारे में कुछ बताइए। So honestly, I will not be the right person, because generally we refer to our endocrinologist for the detailed assessment of all these patients. But the basic idea is to optimize. If someone is hypothyroidism, irrespective of my bone health, I need to supplement, thyroxine to keep their thyroid, because bone is just one component of it, but it works on several other levels also. Similarly, for parathyroidism, we know patients who have hypoparathyroid, they are more likely to be, hypocalcemic. And then we know about this whole bone health issue where, the bone needs to be, so PTS needs to be supplemented. Also at the therapy end of it, that once I'm going to give bisphosphonates, if I have taken a decision to give bisphosphonates, then the way these medicines work, they are going to cause hypocalcemia. So the idea is basically to optimize the patient, irrespective of the bone health was affected or not. So thyroid, but we generally do not deal with that. Generally, we have our endocrinologists and we refer to them. Which bisphosphonates is better? कुछ oral आते हैं, जैसे जो बताया आपने। So I think that question is easy to answer. Honestly, it is patient's preference. Some will prefer to take oral tablet. Some will prefer to take IV. As a prescribing physician, my preference is IV zoledronic acid for one simple reason. Any medicine which is to be taken, on a regular basis, you are likely to miss it, especially the oral medication. IV, I don't need to admit the child, a separate admission for this. The day they are coming for the transfusion, they can take it on that day. So every month a child is going to come for a transfusion. Every third month, I have to give it once in 3 months. So I prefer zoledronic acid every 3 months for a year, and then we are kind of done with the treatment. So my preference is IV zoledronic acid for this practical reason. जैसे आपने बोला उससे टेटनी हो सकता है, तो उसमें कैल्शियम लेवल कितने ऊपर होना चाहिए? कम से कम कितना कैल्शियम लेवल हो तो आप देते हैं?
Yeah, so the calcium level actually needs to be normal, and it is the corrected calcium which needs to be normal. So, sometimes some of the patients may have low albumin levels, and, the calcium level may come as 8, but albumin is also 3.1 and the corrected is normal. So we need to have a normal calcium level to administer zoledronic acid. Now, we may have a situation where, we are doing everything and the calcium levels are still not falling in line. Then, one may still give zoledronic. We saw a lot of tetany with 4 milligram dose. With 1 milligram dose, the only 2 side effect that we saw was the infusional side effect, the fever and shivering kind of thing with that. And that's all. No tetany and no evidence, no episode of hypocalcemia after 1. We also treat a disease called multiple myeloma in adults, where we give zoledronic acid 4 milligram every month. And we see hypocalcemia probably in 5 to 7%, patient. But with 1 milligram dose in thalassemia every 3-month interval, we do not see that. But yes, it's a good idea to check calcium levels. For our other patients, we always check calcium levels before we administer zoledronic acid. एक पेशेंट का क्वेश्चन है, he has already taken for 1 year zoledronic acid, 4 डोज ले चुका है वो, तो उसको दोबारा कभी रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते या क्या? So I've answered it in the chat box. So zoledronic acid has a long-term effect. So even if you have stopped it at 1 year, our study finished at 1 year, so we looked at bone mineral density. But if I don't give any more zoledronic acid, and if I check bone mineral density at 2 years, 3 years, 5 years, it continues to improve. So zoledronic acid has a very long-term effect on our bone health. If I have to draw a corollary between the osteoporosis of the female for which zoledronic acid first came, the dose was 5 milligram once a year. Here we are giving 1 milligram every 3 months. Usually it is sufficient, and we may not need to administer, more zoledronic acid after that. It is possible that yes, after 3 years, 4 years, 5 years, why I'm saying 3, 4, 5, because we do not have data beyond that. But we know that the bone mineral density continues to improve at 2nd year, 3rd year, 4th year, even when zoledronic acid was stopped at 1 year. So further doses are actually not required. Dr. Shruti, we have come across few patients. कई बार ऐसा देखने में आता है कि पेशेंट का फेरेटिन तो 1600, 1800, 2000 है, लेकिन अगर हम MRI करते हैं तो उसमें आयरन ओवरलोड काफी ज्यादा है. तो हाउ यू विल कोरिलेट? उसका क्या रीजन हो सकता है कि इतना फेरेटिन कम क्यों आ रहा है? और ये एक बार नहीं, अगर हम रिपीट भी करते हैं 6 महीने साल बाद, तब भी उसके फेरेटिन कम आ रहा है, लेकिन MRI में ज्यादा आ रहा है. व्हाट कुड रीजन? और क्या उसकी चिलेशन हिस्ट्री बैड है? ये भी नहीं कि चलो हम वैल्यूज गलत मांगे. राइट. सो जब से MRI स्टडी सर आने शुरू हुए, पेशेंट्स के भी हम MRIs कर रहे हैं, वी हैव सीन कि सीरम फेरेटिन और जो टिश्यू आयरन है, कई बार उसके बीच में बहुत अच्छा कोरिलेशन नहीं है. यही बात हम रेस्पॉन्स में भी कर रहे थे कि जब हमारा फेरेटिन कई बार बढ़ रहा है या कम नहीं हो रहा, तो फिर हमें MRI करके देखना पड़ता है कि टिश्यू आयरन का क्या रोल है. सो फेरेटिन का अगर हम कोरिलेशन देखें, इट हैज़ काइंड ऑफ अ गुड कोरिलेशन विद द लिवर आयरन ओवरलोड, जो कि हमें टोटल बॉडी आयरन के बारे में सिग्नल देता है. बट जब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, जैसे हार्ट, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, तो इन सब के साथ फेरेटिन उतने अच्छे से कोरिलेटेड नहीं है. एंड सर यही एक रीज़न है कि शायद हमें MRI, एक बेसलाइन MRI एक 10 साल पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि this is the benefit of MRI, that we get to know what ferritin does not tell us actually. इसका रीजन ये भी हो सकता है, अगर सपोज विटामिन सी डेफिशिएंसी में जैसे थोड़ा फेरेटिन लो होता है, अगर हम उसको विटामिन सी थोड़ा दे दें, सप्लीमेंट कर दें, तो उससे कुछ फेरेटिन इंप्रूव होगा. विटामिन सी का बेनिफिट है, स्पेशली डेस्फेराल के साथ हमें पता है कि विटामिन सी जो है वो आयरन रिमूव करने में हेल्प करता है. इट इंक्रीजेस द आयरन, जो किलेटेबल आयरन हम कहते हैं कि जो आयरन हम किलेट करने वाला आयरन है वो इंक्रीज हो जाता है. विटामिन सी हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग आयरन फ्रॉम द सेल्स, राइट. तो यस, विटामिन सी सप्लीमेंट करके हम अपना डेस्फेराल की जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं. ऑल्दो विटामिन सी बाकी चीज़ों के साथ में, बाकी किलेटर के साथ में बहुत अच्छे से उसका कोई रोल डिफाइन नहीं है एज सच. सर आपसे थोड़ा सा आउटर वे क्वेश्चन चलते हैं. डॉक्टर चौधरी, ये हेप्सिडिन का आजकल बहुत बात होती है, कई हमने देखा है कि हेप्सिडिन का क्या रोल हो सकता है थैलेसीमिया के अंदर? आई थिंक ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है. हालांकि ये पेशेंट्स के लिए अभी इस वक्त अप्लाई नहीं होगा, पर ओके, उनको कुछ समझ आएगी. बहुत अवेयर हैं जी, वो तो कहीं से सुन लेते हैं तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं.
चल, आई नो आजकल गूगल बाबा जो है वो सब कुछ लोग लगे रहते हैं। देखिए, एक तो हमें ये देखना है कि हेपेसिडीन एक मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल 25 अमाइनो एसिड। ये एक बॉडी के आयरन एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। अगर हेपेसिडीन लेवल हाई है तो बॉडी आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट कम हो जाता है। अगर लेवल लो है तो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब ये चीज आएगी कि इन थैलेसीमिक बच्चों में आयरन ओवरलोड ज्यादा है, और ये भी हमने जैसे बताया पर्टिकुलरली फॉर थैलेसीमिया इंटरमीडिया, HBE डिजीज और थैलेसीमिया विद अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिनमें आयरन लेवल जो है बहुत ज्यादा होते हैं और लिवर में डिपॉजिट ज्यादा होते हैं। और इनके अंदर आयरन जो है हमारे गट से जाता है, ड्यूडेनम और गट के थ्रू जाता है। कि अगर और ये पाया गया कि इन टेस्ट किए गए, क्योंकि इन बच्चों के अंदर एरिथ्रोपोएसिस ज्यादा है, ब्लड ज्यादा बन रहा है, और इनके अंदर हेपेसिडीन लेवल कम होता है, और इस वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम हेपेसिडीन इनको बाहर से दें तो हम आयरन एब्जॉर्प्शन उसको कम कर सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे एनिमल्स में स्टडी की गई, और उन्होंने ये दिखाया कि जब हम हेपेसिडीन देते हैं तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हेपेसिडीन इज ए लार्ज मॉलिक्यूल, अगर हम इसको माउथ से देते हैं इट ब्रेक्स डाउन। अब नाउ दे हैव डेवलप्ड मिनी हेपेसिडीन which can also work out in the same way, and but it is all an experimental, or cost of hepcidin is very high. The question which अभी जैसे बात आप कर रहे थे कि mini hepcidin whether we give for thalassemia intermedia or with other thalassemia with hemoglobinopathies or with even thalassemia major, अभी मैंने आपसे जैसे बात कर रहे थे कि यहाँ पे जब हमने आपके साथ अभी स्टडी करी 120 थैलेसेमिक्स में 90% बच्चों के अंदर आयरन लिवर के अंदर बहुत ज्यादा था। वन ऑफ द रीजन इज कि आपने देखा थे कि अबाउट 80% बच्चे थे उसके अंदर जिनके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल प्री ट्रांसफ्यूजन बिलो 9 था, 7-8-9 के बीच। इसका मतलब क्या है कि जब एक स्टडी और था श्रीलंका में अभी हुई है, जहां उन्होंने ये बताया कि जब थैलेसेमिक्स बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन कम होती है तो हेपेसिडीन लेवल कम होता है, और जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और इट इज एन कंट्रोल्स द आयरन एब्जॉर्प्शन। सो दिस कैन बी वन फैक्टर कि इन बच्चों के अंदर जब हीमोग्लोबिन लो है, आयरन लो हेपेसिडीन लेवल होता है, आयरन एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, और ये आयरन लिवर के अंदर भी जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें आयरन एब्जॉर्प्शन कम करना है, क्योंकि बात बड़ी सिंपल है, इन थैलेसेमिक बच्चों के अंदर आयरन ओवरलोड दो जगह से है, ए ट्रांसफ्यूजनल आयरन ओवरलोड, दूसरा है कितना आयरन गट से एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर हम गट आयरन एब्जॉर्प्शन कम कर दें हेपेसिडीन से, पर अब ये देखें कि इनका ज्यादा क्या 90% आयरन ओवरलोड थ्रू ट्रांसफ्यूजन है इन थैलेसेमिक्स मेजर, 95%. Iron absorption is only from the gut plays a very little role. So in thalassemics major, hepcidin may not have a much role, greater role, but in other thalassemics, which are non-transfusion dependent thalassemics, और जहां हम हीमोग्लोबिन 7-8 के आसपास रखते हैं, उनके अंदर हेपेसिडीन may have a role. But these studies are अभी चल रही है, रिसर्च चल रहा है, and maybe mini हेपेसिडीन अगर once ज्यादा कामयाब होता है और मॉलिक्यूल इज इजी टू डेवलप एंड रेडिली अवेलेबल, लार्जर स्टडीज को भी जरूरत पड़ेगी कि हमें क्या डोज स्टैंडर्डाइज करना है। अभी ऑल इट इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वर्क, और अभी क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 3 में अभी ये डेटा अभी नहीं आया है। ओके सर। सर अब कमिंग टू सर डॉक्टर बंसल, आपसे क्योंकि आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, पेशेंट आपका बहुत लंबे समय तक आपके पास रहते हैं, तो एक और क्वेश्चन आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछा जाए, दैट इज कि एक ये देखा गया है कि बच्चों में पेन एब्डोमेन बहुत कॉमन कंप्लेंट है। ये पेन एब्डोमेन का क्या रीजन हो सकता है? Most common pain abdomen reason in children, if thalassemic or non-thalassemic, is constipation. Most common. If
not there, then you start thinking. Then other is psychological. But छोटे बच्चों में psychological कम और थोड़ा बड़े बच्चों में psychological ज़्यादा. तो दो तो main reason तो वो है. पर then उसके बाद drugs जो हम देते हैं थैलेसेमिक्स को, वो उनमें पेन एब्डोमेन होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली ये डेफिनेटली ये अपन यूज करते हैं. दूसरा hepatic capsule distension होता है, तो that could be another reason of थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द होने का एक one of the reasons. Then जो especially intermediate patients हैं या under transfused patients हैं, उनके gallstones बनने के chances ज़्यादा रहते हैं और cholecystitis हो सकते हैं. और बाकी तो फिर abdomen के अलग causes हैं, abdominal peritoneal के problems हैं, या vascular है, abdominal वॉल की प्रॉब्लम्स हैं या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हैं, पैनक्रेटाइटिस है, रीनल पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस जिसमें स्प्लेनेक्टमाइज पेशेंट्स हैं उनके अंदर पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, बट दे आर ऑल रेयर. मोस्ट कॉमन डल पेन बहुत कॉमन. डॉक्टर खन्ना कुछ कह रहे हैं, आप बताइए, बिकॉज़ आपका भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि ये डल एब्डोमेन पेन बहुत कॉमन है थैलेसी बच्चों में. डॉक्टर खन्ना आप कुछ बताएं. जैसे डॉक्टर बंसल ने बताया, इनका एक तो जो हैबिट्स हैं इनके, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन वी फाइंड. एंड देन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में व्हाट वी फाइंड दैट दे डोंट पास स्टूल बिफोर गोइंग टू स्कूल. अब तो खैर आजकल नहीं है. एंड देन दे होल्ड दिस ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स and they pass stool in the evening. That is one of the another reasons, one of the reasons for this pain abdomen. Then medication, of course, is there. Then food, and then psychological. Most of these are there. Probably blood-related problems are only during transfusion or immediately following transfusion. Some children of thalassemia, they complain of pain abdomen immediately following transfusion. ये भी हो सकता है क्योंकि इनमें अक्सर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है. थोड़ी बहुत तो होती है, लेबर स्प्लीन लार्ज होता है तो उससे भी प्रेशर पड़ता है. स्प्लीन में cause dragging pain in the left this thing hypochondrium, and liver में generally, since these enlargement of the capsule and these things, they are very gradual, so they don't cause that much pain. हाँ, spleen का जैसे आपने बताया, it may cause pain because of the pressure on the, even on the, it may reduce appetite also by causing pressure on the stomach. Yeah, there is, if यही causes होते हैं इनके. ड्रग थैलेसीमिक्स में जो stomach disturbance है, drugs like Kelfer and this Deferoxyrox, they're both cause in lot of cases, as Dr. Shruti mentioned, that Deferoxyrox में काफी बच्चों को disturbance, GI disturbance होती है. That is one main reason for shifting. हमारे जो पेशेंट शिफ्ट हुए हैं, मेन तो Deferoxyrox के GI symptoms का ही, because as far as lowering of ferritin is concerned, there is hardly any difference because the drug is same. Only thing is dose you have to reduce. बाकी जो मेरे पेशेंट शिफ्ट हुए हैं टू फिल्म कोटेड टैबलेट, वो स्टाइल के लिए शिफ्ट हुए हैं सारे, कि जी वो नई दवाई आई है, महंगी है, तो चलो अब वो ही शुरू करते हैं. डॉक्टर नथानी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप अक्सर कहते हैं, सबने बोला कैल्शियम लेना है, कैल्शियम लेना है. अब कैल्शियम के इतने सारे साल्ट हैं, साइट्रेट है, ग्लूकोनेट है, आपका कार्बोनेट है, फॉस्फेट है. सो विच कैल्शियम शुड बी टेकन, और यू कैन से विच इज बेटर. और उसमें एक चीज और ऐड हो रही है, दैट इज K2. ये विटामिन K जो है, ये K2 जो है, इसका क्या रोल है इसमें? और विटामिन K2 का रोल तो मुझे नहीं पता. जहां तक कैल्शियम की बात है, अगेन यू नो वन कुड यूज आइदर प्रिपरेशन एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू डिलीवर एन एडिक्वेट एलिमेंटल कैल्शियम टू द पेशेंट. Again, if I go by the standard recommendation is calcium carbonate 500 twice a day. I mean, that's the generic recommendation. But it's like the iron preparation. There are several iron preparations available in the market. It does not matter which one we are using, as long as we are able to deliver the proper elemental calcium dose of that.
And the range of that elemental calcium is actually quite wide. It's 200 to 1000. So practically whatever preparation you are using should be sufficient for that. A good metric would be, once we have given it for 2-3 months, check the calcium levels, of course with the other things, the vitamin D and other things, and then check it. But again, the recommendation by TIF is the calcium carbonate 500 twice a day. कुछ दूसरे minerals का फर्क पड़ता Patients है have patients with calcium carbonate, so we have to be cautious. And in those situations, maybe you can use citrate. But sir is right, Rahul ji, carbonate is the best. डॉक्टर साहब एक चीज और है, इसमें दूसरे मिनरल जैसे जिंक है खास तौर से, अब्जॉर्प्शन में कुछ फर्क पड़ता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में अदर मिनरल्स का? Difficult to pinpoint whether zinc particularly is affecting it. If your question is whether a multivitamin combination is sufficient for it or not, then the answer probably is no, because it may not have that adequate amount of calcium that we need. So we are trying to give everything, and then probably we are not giving calcium. It's the same thing for iron. We are trying to give multivitamin, but majority of them have very low amount of elemental iron. So I mean, give proper calcium separately rather than this. As far as the zinc or other goes, I'm sure if there is one mineral deficiency happening, there would be other mineral deficiencies also happening. It's just that we do not have that information available as to how much low it goes and whether we need to supplement it from outside or not. एक और क्वेश्चन है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और अल्कलाइन फॉस्फेट कई बार हमने देखा है कि रेज्ड होते हैं, इनका क्या रोल है या क्या हाउ टू इंटरप्रेट इट? Raised alkaline phosphatase or raised inorganic phosphorus? So generally the alkaline phosphatase is coming from two sources. One is liver, one is bone. And if we have a decently grown child, probably it is coming from the bone. Even in very small children, apart from thalassemia also, we treat a lot of rickets, and in India rickets is very common. We'll see alkaline phosphatase very high. So in large majority, it is coming from the bone source. So we need to look at that. Of course, liver is an easy thing. Check the liver function and we would know whether the liver is abnormal or not. But probably the major source may be bone itself, and where the bone correcting interventions would be. But then again, I mean, a wiser person in the panel could, shed more light on this. Coming to end, मैं जाते जाते एक क्वेश्चन डॉक्टर खन्ना से और पूछ लेता हूँ. किसी ने क्वेश्चन किया है कि सिंपल फोलिक एसिड हम यूज करते हैं, फोलमाइड करते हैं, उसके बदले में अगर मिथाइल फोलेट है उससे क्या कुछ फर्क है? बिकॉज मेरे पास भी बहुत कंपनी वाले आते हैं, दे से दिस इज मच बेटर. तो व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहेंगे? No difference. Are you asking me, Dr. Yes, sir. Yes, Arora? Yes, sir. Folic acid is recommended actually those who are under transfused or thalassemia intermedia, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Those and folic acid की जो recommended dose is 1 milligram per day, but we don't have 1 milligram tablet of folic acid. Folvite is 5 milligram. Except in Rajasthan, I have seen 2.5 milligram tablet is available with Dr. Rajiv there in Rajasthan. Otherwise, we have 5 milligram. मेरी knowledge में नहीं है सरकार. अच्छा, क्योंकि I hold camps in Ajmer, वहाँ पे 2.5 milligram folic acid is available. What we do is generally वो क्वेश्चन ये था कि डिफरेंस बिटवीन मिथाइल or one फोलेट, tablet or no, recommended standard recommended is folic acid, not methyl folate. so I think we are already 10 minutes, 15 minutes late. So I'd like to thank everyone, Dr. Rahul Nathani, Dr. Shruti, Dr. Chaudhary, Dr. Khanna, Dr. Bansal, and Dr. Kungar. एक बार सबका फिर से धन्यवाद. और मेरा क्या लगता है कि आप बहुत अच्छा जो है रहा, लेकिन सही फीडबैक तो हमें हमारे पेशेंट्स देंगे कि उनको ये कैसा लगा. तो एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि हम कम से कम महीने में एक ऐसा सेशन करते रहेंगे और आगे और नए नए टॉपिक के साथ हमें आप सबका साथ मिलता रहेगा और इससे बच्चों को फायदा होगा. और थैंक यू गगन फॉर जॉइनिंग अस विद द सोसाइटी एंड ओपनिंग सेशन. मेरी एक रिक्वेस्ट है, all people who are attending, जो topic the patients and doctors who prefer, they can mail it to you so that it will help us to select the better topic, what is more needed by the patients and doctors.
Absolutely why- correct. Absolutely agree with that, doctor. Meaning the burning topics which are there, we'll send it, we'll ask our attendees and our patients so that we can work, we can get answers to those burning questions. Totally agree with you on that, doctor. एक मैं रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, जो भी हमारे आज अटेंड किया है, जो भी हमारे स्पेशली फैकल्टी डॉक्टर्स को, जब लिंक भेजता हूँ तो प्लीज अपने कॉन्टेक्ट्स में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट अटेंड करें और ज्यादा पेशेंट अवेयर हो जाए। अभी तो एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। खत्म। टेक Thank you, everyone. ओके, थैंक यू। Thank Okay, you. thank you Thank you. everyone. ओके, थैंक All यू। the best. Bye bye. Bye Thank you. bye. Thank you. Bye bye.